about 42 things in a newborn which are absolutely normal, but they might look abnormal to the mother. Newborn female babies होती हैं 4th या 5th डे पे उनको bleeding होती है vagina से, which is a mini menses, which is normal, but that can sound very alarming to the mother. Meet Dr. Ravi Malik, the pediatrician who's been shaping healthier childhood for over 30 years. From newborns in critical care to nationwide health campaigns, he's not just treating kids, he's transforming how we think about child health as the face of Radix Healthcare. So, डॉक्टर आप इतने सारे पेरेंट्स से रेगुलरली मिलते हैं, सबसे कॉमन कंसर्न या क्वेश्चन क्या होता है पेरेंट्स का आजकल? My child does not eat. Almost 30-40% of the children, they are sexually abused. और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बच्चे कभी बताते नहीं है पेरेंट्स को कि वी आर बीइंग अब्यूज्ड. तो सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि बेबी की जो लैंडिंग है वो बड़ी स्मूथ हो जाए. Those 5 minutes are extremely crucial. क्योंकि अगर 5 से 10 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो देयर कैन बी अ परमानेंट डैमेज. आजकल बहुत बच्चों में बहुत यंग एज में डायबिटीज या हार्ट इश्यूज ऐसी चीजें भी देखने में आ रहे हैं. 1 out of every 4 to 5 children, they are either obese or overweight. The worst part is that obesity is not an illness, it is spectrum of illnesses. We can't give honey till the age of 1 year. It is very important. उसका रीज़न ये है कि आई वुड लाइक टू ऑल्सो नो सॉल्ट और शुगर से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं. you know the basic negative effect with the sugar is पेरेंटिंग के इस सफर में एक सवाल हर माता पिता के दिमाग में जरूर आता है, एम आई डूइंग दिस राइट? आज हमारे साथ मातेहुड पर है एक नाम जो हर इंडियन पेरेंट को जानना चाहिए, डॉक्टर रवि मलिक, एक ऐसे पीडियाट्रिशियन जो पिछले 35 सालों में हजारों बच्चों का इलाज कर चुके हैं. Dr. Malik is the director of Radix Healthcare and he's also an international member of American Academy of Pediatrics and Canadian Pediatric Society. उनकी पेरेंटिंग की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मेडिकल ही नहीं पर्सनल भी है. ही इज़ अ प्राउड फादर ऑफ 2 सक्सेसफुल डॉक्टर्स. तो अगर आपको भी जानना है कि क्या वॉकर्स सच में डेंजरस है, सो यू आर इन फॉर अ पीडियाट्रिक मास्टर क्लास. वेलकम डॉक्टर रवि, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन मातेहुड. आई नो आपका स्केड्यूल कितना हेक्टिक होता है, एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम्स आई थिंक पीडियाट्रिशियन होना और एक पीडियाट्रिक केयर चलाना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. स्टिल यू आर हियर, सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट. Thanks a lot, Priyanka. It is a proud privilege for me to be on this forum. It is nice. So glad to hear that. I was reading your profile और आपका बहुत सारा कंटेंट मैं देखती भी हूँ. आप पीडियाट्रिक केयर में ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स से हैं. क्या शिफ्ट आपने नोटिस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि पेरेंटिंग में और पीडियाट्रिक केयर में कितना शिफ्ट आ गया है? The pediatric care, we have seen a huge shift. जी. You know, we have gone from one orbit to the other orbit, I will say this way. The basic shift has been in the mindset of the parents. जी. They are now more aware on the topic of parenting and on the topic of pediatrics. And they are more enthusiastic. And they are in a way flexible in their mind. They change their strategies of parenting. They are not rigid. जी. And in pediatrics, as far as the pediatrics is concerned, there is a dynamic shift in the illnesses what we are seeing. I remember about 3 decades back, we were seeing a lot of illnesses which have almost gone obsolete now. Tetanus neonatorum, tetanus, then a lot of meningitis, polio of course has been eradicated. But all these infections, because of vaccination, proper hygiene and health education, they have all gone, either they have gone obsolete or their incidence has decreased a lot. So that is one shift in the pediatric practice, and definitely the mindset of parents that has changed a lot. आई थिंक एज अ कंट्री ऑल्सो हम लोग ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है व्हेन इट कम्स टू न्यूनेटल केयर. और एज यू सेड अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है एंड पीपल रियली अंडरस्टैंड कि फर्स्ट 1000 डेज और फर्स्ट 100 डेज वो कितने क्रूशल हैं बेबी की लाइफ में और मदर की लाइफ में भी. सो दैट हैज़ डेफिनेटली चेंज द इंटायर सिनेरियो. और गवर्नमेंट साइड से भी आई थिंक बहुत सारे न्यू पॉलिसीज़ और केयर प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो, if we talk of infant mortality rate, जी. in front of me only, it has drastically reduced. When we were student in early 80s, the infant mortality rate was almost 125 per 1000.
So if 1,000 childbirths are there, almost 125 used to die. And today the infant mortality rate has come down to 24. Still we have to go a big way, because in countries like USA, the current infant mortality is only 5.6%. So we have to still match the results with them. But if you see, there is still a drastic reduction, and it has been decreasing over a period of years. In 1960, it was almost 160. Then the infant mortality rate decreased in 1980s. It was 125. Now it is 24. So over a period of time, it is going to decrease. So I think there has been a good awareness among the public. Government programs are also there in place. And the parents are also more aware, and they are taking care of their children. And of course, the availability of the health professionals have also increased. So I think these are some of the reasons. Access to healthcare. And people are just usually more careful, I guess. More careful. But अगर हम neonatal care की बात करते हैं, newborn babies की बात करते हैं, so first few days उसमें वो they are very delicate and there are so many things to be taken care of. So ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें right after birth, जिसके लिए हमें बहुत mindful रहना चाहिए, और क्या चीज़ें जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? So you know what happens is, on one day you get an alien in your lap. You know, न्यूबॉर्न जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वी पीपल. न्यूबॉर्न की हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा. इफ अ न्यूबॉर्न इज नॉट पासिंग स्टूल फॉर 8 days, it is normal. Or if the newborn is passing 6 to 8 stools per day, that is also normal. So there is a huge spectrum. So anybody who is not attuned with the behavior of the newborn can get worried. तो मदर जो नई मदर है वो चिंता में आ सकती है कि ये बच्चे ने आज तो 8 potty कर दी हैं. So any breastfed child can pass 6 to 8 motions. Those motions are absolutely dark, what we say as golden yellow, dark yellow in color. They can be little liquidish also. They are not formed, so the mother can get worried. Or if the child doesn't pass for 8 days, even that is normal. We don't label it as constipation for that matter. And there are so many things. If you count, there are about 42 things in a newborn which are absolutely normal, but they might look abnormal to the mother. जैसे जो न्यूबॉर्न फीमेल बेबीज होती हैं 4th या 5th डे पे उनको ब्लीडिंग होती है वेजाइना से, विच इज़ अ मिनी मेंसेस, विच इज़ नॉर्मल, बट दैट कैन साउंड वेरी अलार्मिंग टू द मदर. इसी तरह से वेजाइनल डिस्चार्ज है, दैट इज़ नॉर्मल. फाइमोसिस इज़ नॉर्मल, है ना. उसके बाद में जब बेबी पैदा होता है तो पूरे शरीर में रैशेज आ जाते हैं, व्हाट वी कॉल एज एरिथमाटॉक्सिकम, दैट इज़ नॉर्मल. देन स्मॉल सैंड लाइक white particles type of lesions are there on the face, what we call as milia. They are absolutely normal. Palate खोलेंगे तो palate के ऊपर pulse like structure होते हैं, they are Epstein pulse. They are absolutely normal. So there are so many things which are normal, and the child can have, say, what we call as regurgitation 3, 4, 5 times in a day, what we call as sorting. दूध पिया और थोड़ा सा निकाल दिया उसने. तो ये सारी चीज़ें नई मदर को जब तक हम पूरा बताएंगे नहीं तो वो नई मदर, यू नो, ऑफन आई हैव सीन कि रात को एकदम से फ़ोन आता है रात के 12 बजे मेरे एसोसिएट्स को कि डॉक्टर साहब इसने तो 10 मोशंस कर दिए, इसने तो ये कर दिया. सो you know, it is very important that health education should be imparted to the new mothers. हाँ जी, बिल्कुल. I also remember when I gave birth to my first one, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था हर चीज़ को लेके, और आई थिंक अगर एजुकेशन अवेयरनेस होती है तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं. आई रिमेंबर व्हेन शी वाज जस्ट बॉर्न, सो हर लिप्स यूज्ड टू टर्न ब्लू एवरी टाइम शी वुड क्राई, एंड देन आई एम लाइक, इज शी लैकिंग ऑक्सीजन, कुछ स्कैरी है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, इमरजेंसी में ले जाना चाहिए. सो ऐसा पैनिक सिचुएशन बहुत रेगुलरली होता था, बट विद माई सेकेंड वन वो सब disappear ho gaya because I've been there. Hanji. So I could recognize those. So doctor, if I talk about first few hours after the birth, क्या checks होते हैं जो doctors baby को definitely they measure कि weight हुआ या I don't know strength या जो भी measurements आप लोग के mind में होते हैं, क्या चीज़ें check की जाती हैं baby में? जब भी neonate deliver होता है जी, सबसे पहले pediatrician should be there, should be available. हाँ. बिकॉज जो बच्चा है वो माँ के पेट में सांस नहीं ले रहा होता. जैसे ही हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं वो ब्रीदिंग शुरू करता है. तो उससे पहले तो बच्चा जो है मदर की ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जाती है.
तो अंदर सांस तो ले नहीं रहा क्योंकि तो पानी में है। बाहर आने के बाद वो सांस लेना शुरू करता है। तो कई बार इसमें हिकअप्स हो सकते हैं। सांस लेने में उसको दिक्कत हो, या ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, या कई बार सांस ना ले, या कई बार फीटल डिस्ट्रेस हो। एट दैट टाइम क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। उससे क्या होता है कि हम लोग इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन दे देते हैं, अगर दिक्कत होती है इंट्यूबेट कर देते हैं। दोज 5 मिनट्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, क्योंकि अगर 5 से 10 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो देयर कैन बी अ परमानेंट डैमेज। सो सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि बेबी की जो लैंडिंग है वो बड़ी स्मूथ हो जाए। सो वंस द चाइल्ड इज सेफ, अच्छे से उसको ब्रीदिंग होनी शुरू हो गई, हार्ट रेट इज एस्टैब्लिश्ड, एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कीप द चाइल्ड इन नर्सरी फॉर जस्ट ऑब्जर्वेशन। 2-3 घंटे हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट फॉर एनी कंजेनिटल एनॉमली। कई बार क्या होता है कि बच्चा केवल एक किडनी से पैदा हुआ है, कई बार क्या होता है कि बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट होता है, या कोई हार्ट में होल होता है। सो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो हमें पता चल जाता है। अगर बच्चे की 5 की जगह 6 फिंगर्स हैं, या सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, तो वी कैन सेंस कि इसको सारा एग्जामिन करो, कहीं और कंजेनिटल एनॉमली भी हो सकती है। कई बार प्री ऑरिकुलर टैग होता है। सो द पीडियाट्रिशियन, यू नो, द बेल्स रिंग इन हिज माइंड के देखो और भी कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं, तो हम उसको थॉरली चेक करते हैं जी। उसके बाद में डेफिनेटली बर्थ के बाद में वैक्सीनेशंस देनी बड़ी ज़रूरी हैं 0 आवर्स पे, मतलब हम फर्स्ट डे पे ही हमारे को वैक्सीनेशन ज़रूरी होती हैं देनी। हमारी कंट्री में हम लोग BCG, हेपेटाइटिस B एंड पोलियो ये देते हैं डे 1 पे। 3 वैक्सीनेशंस डे 1 पे, वो बड़ी मस्ट है। उसके बाद थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद हम ऑडिटरी एग्जामिनेशन करते हैं। तो ऑडिटरी फिजिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है, लेकिन हम मशीन से भी चेक करते हैं कि इसको कोई ऐसा विकार तो नहीं है जिसमें सुनने में दिक्कत आ सकती है, और अगर उसमें रिपोर्ट एबनॉर्मल है देन वी रिपीट इट लेटर ऑन जी। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में देन वी ट्यून द मदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी ट्यून द पेरेंट्स कि देखो अब के बाद आपने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी है टिल द एज ऑफ 6 months। वी कांट गिव इवन वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट मैटर, और पानी देने से क्या होता है कि वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। तो 6 महीने तक हम मदर को पहले ही ट्यून कर देते हैं। एंड ओवर लास्ट 3.5 decades आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, I can assure you, if you are giving only breastfeeding to your child till the age of 6 months, बहुत कम चांसेस हैं उसको डायरिया, निमोनिया और ये होंगे। बहुत कम चांसेस हैं, इन्फेक्शंस कंट्रोल में रहती हैं और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, मदर बेबी का बॉन्ड। इफ़ आई टॉक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बातें यही हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मदर को उस स्टेज पे समझाना बड़ा ज़रूरी है, उसे सपोर्ट देना बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कि मदर बेचारी थोड़ा सा बेव हो सकती है, नहीं डॉक्टर साहब आ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैंने बॉटल शुरू कर दी। सो वंस यू स्टार्ट विद अ बॉटल देयर इज़ अ निपल कन्फ्यूजन एंड देन प्रोबेबली द चाइल्ड विल नॉट लैच योर ब्रेस्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी शुड बी केयरफुल व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न। आई रिमेंबर व्हेन माई डॉटर वॉज बॉर्न, सो अभी हम लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि शी वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया। सो वहाँ पे गाइडलाइंस थे कि आफ्टर 4 months आई कुड स्टार्ट सॉलिड्स, बट इंडिया में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि 6 months तक नो वाटर, नो अदर फूड, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला recommended as breastfeeding. So why do you think that is the case? देखो ऐसा है प्रियंका कि these guidelines they keep on changing. हाँ जी। मुझे याद है जब 20 साल पहले प्रैक्टिस मैं करता था तो मैं खुद कहता था कि 4 महीने पे दे दो, बिकॉज गाइडलाइंस वर सच। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है जब आपका बेबी 9 साल पहले जो फर्स्ट बेबी हुआ था उस वक्त हो सकता है कि वहाँ पे यूरोपियन गाइडलाइंस ये हों, बट जनरली स्पीकिंग इंटरनेशनली जो गाइडलाइंस हैं बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं है। तो अभी जो गाइडलाइन है वो यही है कि वी स्टार्ट द टॉप फीड्स आफ्टर 6 months ओनली, एंड दैट टू वी प्रेफर के 6 से 9 महीने में भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें, ईटेबल्स दे दें, ऊपर का दूध इफ पॉसिबल ना दें। अगर मदर वर्किंग नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो 9 months तक हम ऊपर का दूध नहीं देते। वी कीप ऑन गिविंग ईटेबल्स, दाल, खिचड़ी, वॉट एवर योर स्टेपल फूड इज देयर वी कैन गिव। लेकिन हम उसके अंदर भी कोशिश करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहे 9 months तक। 9 months के बाद अगर थोड़ा लगता है कि बच्चे का वेट बढ़ गया है, रिक्वायरमेंट कैलोरीज की जाता है, देन वी ऐड विद द टॉप मिल्क। सो दीज आर द वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस विच वी शुड फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट बोथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग बैक टू फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, एक और डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि बेबी को राइट आफ्टर बर्थ बेथ करना चाहिए, नहलाना चाहिए, या कुछ डेज़ के बाद नहलाना चाहिए। सो व्हाट इज़ आइडियल?
देखिए, जब बर्थ होता है बेबी का, जी। तो बेबी जब मदर के इधर से आता है तो डेफिनेटली काफ़ी गंदा होता है, उसके ऊपर लाइकर भी लगा होता है, वो भी होता है। तो उस वक्त वी कैन गिव बाथ, और उस वक्त हम उसको क्लीन रेप भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बेदिंग कैन बी स्टार्टेड आफ्टर 24 आवर्स। कई बार लोग कहते हैं नहीं, जब तक अम्बलाइकल कॉर्ड निकलेगी तब हम बात देंगे। जी। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, वंस वी आर बेदिंग द चाइल्ड, तो हमारे को उस वक्त 2-3 चीज़ों का बड़ा खास ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जो नहलाते हैं ना, तो गर्दन से नीचे पानी डालो, दैट इज़ ऑलवेज सेफ। कई बार क्या होता है, हम ऊपर से पानी डालते हैं, बच्चा इधर उधर हो जाता है, नाक में चला जाता है, चाइल्ड कैन एस्पिरेट। सो ऐसा कई बार होता है कि महीने 2 महीने में हमारे पास इमरजेंसी में एक आध ऐसा न्यूबॉर्न या छोटा बच्चा आता ही है जिसमें मदर कहती है मैं नहला रही थी डॉक्टर साहब और एकदम नीला पड़ गया और सांस में दिक्कत आई। सो वंस द चाइल्ड कम्स टू अस, देयर इज़ अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, थोड़ा उसने एस्पिरेट किया होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सर्दियों में भी हमें खास ध्यान रखना है कि थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर में, चाहे आप अपने बेडरूम में ही जब ठंड बहुत है वहीं पर ही आप उसको नहलाएं, बट देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस। पानी तैयार है, टॉवल तैयार है, सब कुछ है, देन वी विल take off the clothes, we will do some massage and give the bath and pack the child. So ये जो सारी चीज़ें हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। कई बार मदर्स कहती हैं नहीं, अम्बलाइकल कॉर्ड गिरने के बाद ही हम नहलाएंगे। अम्बलाइकल कॉर्ड 7वें 8वें दिन गिर जाती है, ठीक है, तब तक आप अच्छे से स्पॉन्जिंग कर दो। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर वी कैन बी फ्लेक्सिबल। सो वी हैव टू फाइन ट्यून बिटवीन व्हाट आर द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर द मेडिकल रिकमेंडेशंस, और उसको हमें ब्लेंड करना बड़ा ज़रूरी है। हम चाहे जो मर्जी करते रहें, अगर घर में उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि इसको नहीं करना, तो इट विल बी वेरी, छोटी सी चीज़ है जी। वी कांट गिव हनी टिल द एज ऑफ 1 ईयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाउस होल्ड में हम हर वक्त हनी देते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो शहद में होता है। अब वो किसी शहद में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट वी कांट टेक अ रिस्क। तो वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। 1 साल से छोटा बच्चा ना, उस बैक्टीरिया को, गट उसकी इमेच्योर होती है, इफ आई टॉक इन अ लेमन टर्म, द चाइल्ड कैन नॉट हैंडल। तो वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकती है और बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब एज ओल्ड प्रैक्टिसेस को हमें टाइम आ गया कि हमें धीरे धीरे करके जो है छोड़ देना चाहिए, और जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं उनको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सो दिस इज वन एग्जांपल व्हिच आई हैव टोल्ड यू, जहां पर कि आई एम वेरी रिजिड कि भैया शहद नहीं आप दोगे जी, क्योंकि इसमें ये हो सकता है। लेकिन छोटी मोटी चीजें हैं, देयर वी कैन फाइन ट्यून, कोई बात नहीं करो। बॉटल फीड, आई एम एब्सोल्युटली, मैं तो इतना कहता हूँ कि आप बॉटल दे दो तो मेरे पास मत आना। we get little rigid and we tell them and we give them lot of examples कि जंगल में इतने जानवर हैं, all mammals are there, किसी पे बॉटल नहीं है। So then the mother gets confidence कि बॉटल की शायद ज़रूरत नहीं है। So कई जगह पे हम बहुत rigid हो जाते हैं और कई जगह पे हमें flexible होना पड़ता है, seeing the cultural। आई थिंक मदर्स के माइंड में हमेशा एक डाउट होता है, एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है कि मेरा बेबी इज़ नॉट फेड इनफ, वो कहीं ना कहीं हंग्री है और मेरे मिल्क इनफ नहीं हो रहा है, इसलिए बॉटल से टॉप फीड दे देंगे तो दे विल फील फुलर। एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसकंसेप्शन इट हैपेंस। देखो प्रियंका, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए। पहली मिसकंसेप्शन तो यह है कि मेरा फीड नहीं आ रहा। So we have to encourage the mother. In fact, some medicines are also available, galactococcis कहते हैं, which can increase the mother's feed. तो मदर को थोड़ी साइकोथेरेपी दी, थोड़ी वो मेडिसिन दे दी, थोड़ा सा पेशेंस दिया, फीड आ जाता है। मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है, इफ द मदर इज लिटिल कोऑपरेटिव तो हमारे को बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली ये। दूसरी मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर साहब 6 महीने बाद मैंने ड्यूटी पे जाना है तो इसको आदत डालनी है। सो माई सबमिशन इज कि जब आदत डालेंगे 2 दिन पहले देखेंगे ना, अभी यू कीप ऑन गिविंग योर फीड, तो वो आदत डालने के चक्कर में डिफिकल्ट होगी। रीज़न क्या है? At this stage, if you give bottle, what will happen is nipple confusion will occur. Bottle से लबालब दूध आ रहा है, breast से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो what will happen is child will keep on leaving breast. Absolutely. And you will be handicapped to give the bottle only. That is what happens, I think. So, doctor, recently काफ़ी cases imperforate anus के भी आ रहे हैं, जिसमें babies जो हैं वो स्टूल पास नहीं कर पाते हैं। So, ऐसे cases को आप कैसे हैंडल करते हैं? Imperforate anus होता है कि anus में होल नहीं है and the child is not able to pass the stool. जी. So, it is a kind of an emergency, क्योंकि stool अंदर accumulate होता रहेगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला रूल ये है, 24 hours में child has to pass the stool. हाँ जी।
and in 48 hours of birth the child has to pass urine. It is very important. लेकिन हम लोग जो मैं कह रहा था इनिशियल एग्जामिनेशन करते हैं, उस एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कि हम कैथेटर दे के पेटेंसी ऑफ एनस को चेक करते हैं. जो मैंने कहा ना, हम डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, कोई कंजेंटल एनॉमली तो नहीं है, वो तो नहीं है. उसमें हम लोग इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसीजर कि हम लोग एनस को एग्जामिन करते हैं और उसमें से कैथेटर डाल के देखते हैं कि इट इज़ पेटेंट और इट इज़ नॉट पेटेंट. सो वी डिटेक्ट एट बर्थ ओनली एंड वी कैन ट्रीट एट बर्थ ओनली. तो इसमें तो सर्जरी होती है, तो सर्जरी होती है, सिंपल सर्जरी होती है, ठीक हो जाते हैं. बट जब भी इम्परफोरेट एनस होती है, देन वी आर मोर केयरफुल. वी गेट इको डन, अल्ट्रासाउंड डन टू डिटेक्ट. वी नीड टू स्निफ आउट कि यहाँ पे कहीं और कोई कंजेंटल एनॉमली तो नहीं है. बिकॉज जनरली अगर एक कंजेंटल एनॉमली होती है तो दूसरी भी एसोसिएटेड हो सकती हैं, स्पेशली GIT की. पता चले अभी तो हमने एनस को ट्रीट कर दिया, ड्यूडेनल एट्रीजिया भी पड़ा हुआ है, इसमें तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं. सो यू नो इट इज़ इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, कंजेनिटल डिफेक्ट को अगर लेमन टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. सो जब एम्ब्रियोलॉजी हो रही होती है तो होता क्या है कि दोनों तरफ के जो हैं वो स्किन आते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो कंजेनिटल डिफेक्ट आता है. सो कंजेनिटल डिफेक्ट्स के रीजंस भी कई बार होते हैं, कई बार दे हैपन इडियोपैथिकली, बिना किसी रीज़न के. रीजंस होते हैं अगर मदर को ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर रेडिएशंस एक्सपोज कर दिया, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे दी जिसकी वजह से कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे ट्राइसोमी 21 है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि कंजेनिटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं. सो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन रीजंस, बट एट टाइम्स दीज कंजेनिटल एनॉमलीज अकर्स without any syndrome or without any precipitating event. सो डॉक्टर, आप इतने सारे पेरेंट्स से रेगुलरली मिलते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं, सबसे कॉमन कंसर्न या क्वेश्चन क्या होता है पेरेंट्स का आजकल? My child does not eat. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सदियां बीत गई, लेकिन मदर्स बीत गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जनरेशन्स चली गई. बट ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूँ कि भाई मेरा बच्चा खाता नहीं है डॉक्टर साहब, इसको भूख नहीं लगती है. दूसरा सवाल वो ये भी कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता. दीज आर द टॉप 2-3 जो है. और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये मुझे कमज़ोर लगता है और इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं. So you know, these are some of the concerns with the mothers, but the top one is my child does not eat. Should that really be a concern? Look, my clear message is that in majority of the cases you don't need to see the appetite of the child. We need to respect the appetite of the child. You know, जो भूख है बच्चे की, वो कई बच्चों की, 2 बच्चे 12-12 किलो के हैं, उनकी भी भूख में चेंज आ सकती है. वो एक ज़्यादा खा सकता है, कम खा सकता है. So long as, so my submission on this topic is, so long as the child is growing well and is developing well, उसके milestones ठीक चल रहे हैं, उसका weight और height ठीक चल रहा है, इसका मतलब उसका appetite ठीक है. Generally there is a disconnect between the appetite of the child and mother's expectation. माँ expect कर रही है कि ये इतना खाए और बच्चे के उतना appetite नहीं है. और वो disconnect क्यों होता है? Mothers they forget the multiplication factor. अब 12 किलो के एक बच्चे ने अगर आधा बनाना खा लिया, इसका मतलब मदर ने 2 बनाना खा लिए. सो मदर शुड यू नो सी पुट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू प्लेस. 200 ग्राम अगर बच्चे ने दूध पी लिया, इसका मतलब माँ ने 1 लीटर दूध पी लिया. अगर 10 किलो के बच्चे ने सपोजिंगली 200 ग्राम दूध पी लिया है, तो एक मदर जो 70 किलो की है, यू कैन प्रिज्यूम कि उसने भी 800 ग्राम. अब 800 ग्राम दूध पीने के बाद में या 6 टुकड़े बर्फी के खाने के बाद में आपको भूख नहीं लगेगी. बिल्कुल. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हम घर में चॉकलेट्स और हाई कैलोरिक फूड्स दे देते हैं जिसमें कैलोरी तो जा रही है बट यू डोंट गेट न्यूट्रिशन. ये भी जो है दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज ऑफ एपिटाइट ऑफ द चाइल्ड. सो इन फैक्टर्स को अगर हम नज़र में रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, व्हाट स्नैक्स वी आर गिविंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग द हेल्दी स्नैक्स, नट्स दो, आप उसको योगर्ट दो, यू आर गिविंग यू नो चॉकलेट्स एंड दिस थिंग, दोज हु आर हाई कैलोरिक, तो वो बच्चा तो अपना डिनर को स्किप कर देगा. एंड वी मदर्स थिंक इसने कुछ खाया नहीं है. So that is the disconnect there. That disconnect there. और बड़े सारे डिस्कनेक्ट्स होते हैं कि आप स्क्रीन दिखाते हुए खिला रहे हैं, बच्चा अपना वो खाए जा रहा है, मील टाइम नहीं है, रेगुलेटेड वो नहीं है. आई डोंट वांट के, एंड द चाइल्ड appetite should also be respected and the preferences of the child should also be respected. मैं साग नहीं खाऊंगा, मटर पनीर खाऊंगा, तो मटर पनीर खा ले. मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, तो वो खा ले. So long as he is nourishing well. So इसमें
एपिटाइट में बहुत फिडल करना ठीक नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग सेड दैट, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों को फिजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे एपिटाइट कम होता है, सो वी इवैल्यूएट दैट. बिल्कुल. इट इज़ नॉट कि हमने देखते ही क्या दिया, नहीं जी, जी जी. it is your misconception. So we evaluate, and in most of the cases, as per with my experience, child is fine, but there is a disconnect. बिल्कुल. सो कमिंग बैक टू इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड्स, 6 मंथ्स में यू रिकमेंड कि बच्चों को हम लोग टॉप फीड या सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू बी रियली माइंडफुल ऑफ? क्या फूड आइटम्स हैं जो हमें मस्ट इंक्लूड होने चाहिए डाइट में, और क्या चीज़ें हैं जो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए? देखो, जहाँ तक फूड आइटम्स का तल्लक है ना, हमें जो 6 महीने के बाद में हमें सेमी सॉलिड फूड्स ऐड कर देने चाहिए जी. लेकिन सबसे पहले हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए, हम क्या दे सकते हैं क्या नहीं. पहला रूल बताया, हनी नहीं देंगे 1 साल तक. जी. दूसरा रूल है कि 1 साल तक फ्रूट जूसेस नहीं देंगे. Okay. तीसरा रूल है 1 साल तक सॉल्ट नहीं देंगे. और चौथा रूल है कि 2 साल तक हम एडिड शुगर नहीं देंगे. आई एम टॉकिंग ऑफ एडिड शुगर इन दिस थिंग. सो ये कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए. उसके बाद हम बच्चे के लिए आगे बढ़ेंगे, हम दें क्या ना दें. नाउ टू स्टार्ट विद, वी कैन स्टार्ट विद दाल हम दे सकते हैं उसको, सूजी की खीर दे सकते हैं उसको, या हम मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं उसको. धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं. सो द आइडिया इज़ बच्चे को पहले एक फूड दें, लेट द चाइल्ड बी अकस्टम्ड विद दैट फूड. उसके बाद फिर हम दूसरा फूड दें, उससे थोड़ा अकस्टम्ड हो जाए. उसके बाद फिर हम ऐड करते जाएं, देन वी कैन ऐड विद द वैरायटी ऑफ द फूड. सो बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 9 months ओल्ड, चाइल्ड शुड बी ईटिंग एवरीथिंग. द ओनली थिंग इज़ कि उसको जो भी दें हम सेमी सॉलिड दें, क्योंकि उसके पास दांत तो है नहीं चबाने के लिए. तो द चाइल्ड कैन एस्पिरेट एंड चोक. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम दे रहे हैं उसको ब्लेंडेड दे रहे हैं, बॉइल्ड दे रहे हैं, अच्छे से उसको हम सेमी सॉलिड की फॉर्म में दे रहे हैं. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेपल डाइट ऑफ एनीबडी, किसी की स्टेपल डाइट सांभर है तो आप सांभर खिला दो उसको, किसी की वो है. द ओनली थिंग इज सॉल्ट कंटेंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. जी. हनी के बारे में तो हमने बात किया कि क्यों नहीं देना चाहिए. आई वुड लाइक टू ऑल्सो नो सॉल्ट और शुगर से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं? You know, the basic negative effect with the sugar is that once the child develops a taste of sugar at that age, at the age of say 1 year, 1.5 years, or 6 months or so, then the child will stop eating, you know, cereals and pulses, क्योंकि उसका soft palate हो जाए, sugary palate अगर हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें नहीं लेगा, तो nutrition is likely to suffer. So this is one reason, and the studies have shown that the child's kidneys, infant's kidneys are immature to deal with more load of sodium. तो अगर हम उसको salt देते हैं जिसमें sodium is there in everything, for that matter sodium is there in milk also, लेकिन I am talking of added salt. अगर उसके बाद हम और उसको सोडियम दे देते हैं तो फिर उसको हैंडल करना किडनीज के लिए मुश्किल होता है. इट हैज़ बीन सीन बाद में उनको हाइपरटेंशन वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है. और अगर शुगर की अभी से हैबिट बनाते हैं तो फिर वो बाद में जाके दे कैन गेट ओवरवेट, ओबीज एंड दिस थिंग. सो दिस इज द बेसिक थिंग, एंड दीज आर ऑल स्टडीज विच हैव बीन डन. It is not that Dr. Ravi Malik ने घर में बनाया है. It is, you know, these have been controlled blind studies which have been done and they have proved कि ये चीज़ें बच्चे के लिए हानिकारक हैं, ये नहीं देनी चाहिए, और ये बेटर पेरेंटिंग के लिए ये देना चाहिए. बिल्कुल. वेरी यूजफुल टिप्स. सो एज यू सेड, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि बच्चा खा नहीं रहा है, एंड दैट लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग न्यूट्रिशन को लेके भी बहुत कंसर्न रहते हैं, और शायद क्योंकि ओवरऑल पेरेंट्स में न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है. कई बार मेरी मदर से जैसे मैं सुनती हूँ, शी सेज कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही पैनिक करते हो, बच्चा अपनी डाइट ले लेता है, तुम लोग को इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए. ये चिल्ड्रन के केस में किस एक्सटेंट तक इट इज़ ट्रू डॉक्टर? क्या हमें उतना वरिड होना चाहिए जितने आजकल के पेरेंट्स हैं? नहीं, अगर हमारा बच्चे की ग्रोथ ठीक है, डेवलपमेंट ठीक है, वेट फॉर एज ठीक है, एंड हाइट फॉर एज इज़ फाइन, तो हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मतलब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये मदर्स की वरी ज़्यादा होती है. तो रियलिटी में अगर बच्चे का हाइट, वेट सब ठीक चल रहा है तो रियलिटी में एपिटाइट ठीक रहता है. ओके. पर आर देयर एनी रेड फ्लैग्स जिनको देख के हमें लगता है कि डाइट में कुछ गड़बड़ है, या फिर हमको थोड़ा और इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली. अगर आपके बच्चे का वेट 5th सेंटाइल से 85 सेंटाइल है, देन इट इज़ फाइन.
If your child's weight is less than 5th centile, you are concerned. If your child's height is less for this thing, then you are concerned. जी. अगर आपका बच्चा 2 साल के बाद में 4 सेंटीमीटर या उससे कम ग्रोथ ले रहा है हर साल, तो वी आर कंसर्न, क्योंकि उसको 6 सेंटीमीटर के करीब बढ़ना चाहिए. Okay. अगर बच्चे की हमारी डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही है, माइलस्टोन्स ठीक नहीं आ रहे हैं, देन वी आर कंसर्न. जी. तो अगर वेट ठीक नहीं चल रहा, हाइट ठीक नहीं चल रही, और साथ में एसोसिएटेड बीमारियां भी हैं, हो सकता है बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या अस्थमा है, और उसके बाद बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वी शुड एड्रेस टू द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. जी जी. So in this case, doctor, अगर nutrition is not enough, should parents turn to supplements for children? देखिए, जो सप्लीमेंट्स है ना, दे आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड अनलेस द चाइल्ड हैज़ गॉट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. Okay. अब अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो उसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो वाइटमिन्स और एक मिनरल्स. तो बच्चे को डेफिनेटली प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी, डी सारे मिलने चाहिए. स्पेशली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. और अगर मिनरल्स की बात करें तो आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, दे आर रिक्वायर्ड बाय द चाइल्ड. सो अनलेस देयर इज़ अ डेफिशिएंसी, पर्टिकुलर डेफिशिएंसी ऑफ दैट, वी नीड टू गिव द वाइटमिन्स और मिनरल्स. अगर डेफिशिएंसी नहीं है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द सप्लीमेंट्स आप उसको रिच फूड दो. जैसे विटामिन ए है, कैरेट्स में है, स्पिनच में है, तो आप उसको वो चीज़ें दो. विटामिन सी है, तो उसके लिए आपको सिट्रस फ्रूट्स हैं, यू कैन गिव दैट. उसके अंदर विटामिन सी बहुत है. विटामिन डी है, सनलाइट का एक्सपोजर दे दो बच्चे को. मिल्क के अंदर विटामिन सी है, विटामिन डी है, नट्स में है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप नेचुरल डाइट और बैलेंस डाइट बच्चे को दो, रादर देन डिपेंडिंग मोर अपॉन दिस थिंग. बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊं. बर्थ से हम लोग विटामिन डी देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज द चाइल्ड इज ग्रोइंग फास्ट. हाँ. बच्चे की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि सपोजिंगली राइट नाउ आई एम 70 kgs एंड आई हैव टू ट्रिपल माई वेट इन 1 year. तो अगर बच्चा बर्थ के ऊपर 3 किलो का होता है, उसे ट्रिपल करना है विद इन 1 year. सो दैट इज़ ए ह्यूज ट्रिमेंडस रेट ऑफ ग्रोथ. इफ वी इमेजिन ऑन आवर सेल्स, अगर हम 70 किलो का 210 किलो का एक ही साल में होना है, तो यू कैन इमेजिन. सो उस वक्त इनको रिक्वायरमेंट कैल्शियम की, विटामिन डी की बहुत होती है. सो व्हाट द इंटरनेशनल रिकमेंडेशन इज दैट बर्थ के ऊपर आप उसको विटामिन डी शुरू कर दो जी. और वो चलेगा 1 साल तक. 4 महीने का होते ही उसको आयरन शुरू कर दो, वो आगे चलेगा. सो दीज आर मैंडेटरी रिकमेंडेशंस एंड द रेस्ट आई एम टॉकिंग ऑफ द रिकमेंडेशंस जब हमारे को डेफिशिएंसी लगेगी तभी हम देंगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. जब हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं बच्चे को रिकेट्स का विटामिन डी दे देते हैं, बिल्कुल. लगते हैं कि उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, उसको सी दे देते हैं, बी की डेफिशिएंसी है, बी दे देते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. बिल्कुल. I remember vitamin K was also something recommended to my child. वो हम क्यों देते हैं? विटामिन के बहुत मैंडेटरी है. जी. एवरी चाइल्ड हु इज बॉर्न, उसको हमने विटामिन के देना ही देना है, नहीं तो हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो जाती है, तो हेमरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो विटामिन के इंटरनेशनली इज रिकमेंडेड. और उसमें तो कोई मदर को बताने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो बच्चे के पैदा होते ही विटामिन के वेयर एवर द डिलीवरी इज हैपनिंग इज गिवन. Okay. चाहे वो कहीं गांव में हो रही है, चाहे वो देहात में हो रही है, चाहे वो कहाँ हो रही है, विटामिन की इज टू बी गिवन. इट इज़ मैंडेटरी एंड इंटरनेशनली एवरीवेयर वी गिव दैट. श्योर. गमीज भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं चिल्ड्रन में एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लीमेंट्स. What is your opinion about that? देखिए, ऐसा है कि गमीज भी आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स भी आ रही हैं, कैंडीज़ भी आ रही हैं विटामिन डी की और सब कुछ. उसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं. इसके अंदर शुगर कंटेंट कितना है, कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है. सो लॉट ऑफ थिंग्स. सो सिंप्लीफाइड वे में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है जी. तो विटामिन डी के बड़े अच्छे सेशे आते हैं विच आर पैलेटेबल. आप उनको लो बनिस्पत के गमीज़ में. अब गमीज़ के अंदर कितना विटामिन डी है, आप कितना रिकमेंड कर रहे हैं, तो या तो गमीज़ खानी है तो गमीज़ इंजॉय कर लो. और अगर वो दैट इज़ व्हाट इज़ माई कंसेप्ट ऑन टू दिस कि हम बच्चों को ये देते हैं. वैसे पैलेटेबल सिरप्स आते हैं सारे वाइटमिन्स के और सब कुछ है वो देते हैं. बट एट टाइम्स चिल्ड्रन आर वेरी फसी एंड वी नीड टू गिव द सप्लीमेंट. ऐसी चीज़ों में वी कैन कंसिडर दीज थिंग्स प्रोवाइडेड रीडिंग द कंप्लीट कंटेंट्स ऑफ इट कि इसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ है, कितना शुगर यूज़ हुआ है, या कोई ऐसा कलरफुल सब्सटेंस तो नहीं यूज़ हुआ जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो. बिल्कुल. We have to read the label very carefully and know what is right and what is not. एक और चीज़ है डॉक्टर जिसके बारे में वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, विच इज़ द कंजम्पशन ऑफ घी और एनी फैट बच्चों के डाइट में. सो
क्या बच्चों को घी देना चाहिए डाइट में? देखो, बच्चों को घी डेफिनेटली देना चाहिए। जी। अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करें तो उसके अंदर मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, बाकी तो इट वेरीज विद द एज ऑफ द चाइल्ड एंड विद दिस थिंग। 55% हमें कार्बोहाइड्रेट देने चाहिए, 20% हमारे को प्रोटीन देने चाहिए और 25% हमारे को फैट देना चाहिए। जी। तो हेल्दी फैट जो है वो बच्चों को हमारे को देना चाहिए, जिससे कि बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ होती है। लिपिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑल्सो एंड फॉर द नर्वस सिस्टम इट इज़ रिक्वायर्ड। जी। तो घी हमारे को देना चाहिए, लेकिन हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे को ट्रांस फैट्स नहीं देने चाहिए। ट्रांस फैट्स होता है जैसे आई कैन गिव यू, जैसे जहाँ समोसे तलते हैं और तले जाता है घी, सो ट्रांस फैट शुड बी अवॉइडेड, सैचुरेटेड फैट शुड बी अवॉइडेड लिटल। अदरवाइज हमारे को नेचुरल फैट देना चाहिए। नेचुरल फैट जितने नट्स हैं उनके अंदर फैट होता है, हमारे को नट्स अच्छे से उसको देने चाहिए और फैट भी देना चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा सा जो केयरफुल रहने की ज़रूरत है वो ये है कि जो जंक फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, चांसेस हैं उसके अंदर ट्रांस फैट होगा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, शुगर ज़्यादा होगी। ये चारों चीज़ें जो है बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। बट डेफिनेटली फैट इज़ अ नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ ए चाइल्ड एंड इट शुड बी गिवन। हैविंग सेड दैट, कई बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, तो उस वक्त जो है उनकी जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन है वो थोड़ा सा फैट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, लेकिन फैट इज़ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ डाइट। जी। जी। आजकल बहुत बच्चों में बहुत यंग एज में डायबिटीज़ या हार्ट इश्यूज़ ऐसी चीज़ें भी देखने में आ रहे हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल विद कि ये तो कंप्लीट नो है? देखो, टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यू विल सरप्राइज टू नो कि 1 out of every 4 to 5 चिल्ड्रन दे आर आइदर ओबीज और ओवरवेट। तो ये तो एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट ओबेसिटी इज नॉट एन इलनेस, इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेसेस। सो अगर आपको एक बार ओबेसिटी हो गई है तो सूनर और लेटर चांसेस हैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको अर्ली हार्ट अटैक्स व्हाट वी कॉल एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, ओबीस पीपल के अंदर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो ओबीस पीपल में 3 times ज़्यादा उनका इंसिडेंस है। साइकोसोशल प्रॉब्लम्स ओबीस पीपल में आती है। जो बच्चे ओबीस होते हैं दे गेट टारगेट टू बुलिंग ऑल्सो, और जो ओबीस पीपल हैं दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू गेटिंग डिप्रेशन ऑल्सो। तो ओबेसिटी पूरा का पूरा एक जखीरा है बीमारियों का, इफ आई टेल यू दैट वे, तो उसको हमें प्रिवेंट करना बड़ा ज़रूरी है। एंड वन मोर फैक्ट आई विल लाइक टू टेल यू, the obesity, if it starts in childhood, 80% chances are that it will go till adulthood. जाती नहीं है ओबेसिटी, तो वो चलती रहती है। सो ओबेसिटी को प्रिवेंट करना बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, जंक फूड कम लें, हाई कैलोरिक फूड्स को कम लें, चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें कम से कम लें, एंड दे शुड एज्यूम मोर ऑफ योगर्ट, फ्रूट्स, नट्स एंड लेग्यूम्स। ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें विच आर मोर हेल्दी, एंड द वेट शुड बी केप्ट इन द रेंज। एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोटा नहीं होता, मेरा बच्चा चबी नहीं होता, तो मैं मदर्स को यही कहता हूँ, लुक योर चाइल्ड शुड बी इन द नॉर्मल रेंज ऑफ द वेट। आई डोंट वांट द चाइल्ड टू बी फैट इन एनी वे। तो वो जो पुराना कंसेप्ट है कि गाल फूले होने चाहिए, मोटा होना चाहिए, गुलगुला होना चाहिए, आई थिंक दैट मिथ एंड कंसेप्ट शुड बी नाउ ब्रोकन। बहुत बार पेरेंट्स ऑल्सो टेंड टू इग्नोर इट, सेइंग कि अभी बच्चा है, अभी कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। बट एज यू राइटली सेड, अगर बचपन से ही ओबेसिटी है तो वो अडल्टहुड तक आती है, कंटिन्यू होगी। सो पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी वेट मेंटेनेंस शुरू से ही होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पर आई थिंक एज पेरेंट्स ऑल्सो, अगर बच्चा खा रहा है उसको ना बोलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि बच्चा क्या खा रहा है। देखो, खा तो रहा है, लेकिन वो क्या खा रहा है और कितनी फ्रीक्वेंटली खा रहा है। व्हाट आई मीन टू से यू इज, अगर बच्चा महीने में हफ्ते में एक बार छोटी सी चॉकलेट ले लेता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर द रोल ऑफ पेरेंटिंग कम्स। सो यू नो, या तो हम परमिसिव पेरेंटिंग करें जिसमें कि हमने बच्चे को खुला छोड़ दिया, जो मर्जी खाता रहे, दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। द बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग इज द ऑथोरिटेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग, विच इज अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ ए पेरेंटिंग, वेयर द मदर एक्सप्लेन्स टू द चाइल्ड व्हाई यू शुड नॉट ईट दिस एंड व्हाई यू शुड ईट दिस, विच इज़ हेल्दी, विच इज़ नॉट हेल्दी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स का ही रोल है। Recently, my younger one, he's just turned 5.
and he's been explaining to me कि protein कितना important है, and I'm yes. just so proud of him and so Yeah. surprised to also see कि at such a young age they're talking about protein Protein and and diet. it's very So good. I think change तो हो रहा है, but we have to work even harder with our kids. Another thing which is very commonly asked, आपने अभी हमको बताया, is the immunity part. Parents बहुत concerned हैं कि बच्चों की immunity को कैसे improve किया जाए. So उसके लिए डॉक्टर्स पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है ना बीमार ही रहता है। तो ये पिछले महीने भी बीमार था, 2 महीने पहले भी बीमार था, अब भी बीमार था। सो आई विल लाइक टू गिव अ वेरी क्लियर कट मैसेज कि अगर आपके बच्चे को साल में 6 से 8 बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रही है, वायरल इन्फेक्शन हो रही है, थोड़ा फीवर आ रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्पेशली इफ योर चाइल्ड इज लेस देन 5 years। रीज़न क्या है? 200 तरह के वायरसेस हैं जी, और उनमें से कोई कोई वायरस बदल के बच्चे को फीवर कर सकता है। सो देयर आर 200 वेराइटीज ऑफ वायरसेस विच कैन कॉज फीवर इन अ चाइल्ड। तो वो बार बार करके कभी नॉर्वॉक वायरस आ गया, कभी रोटा वायरस आ गया, कभी रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस आ गया, कभी इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा आ गया। सो यू नो दीज आर द वायरसेस जो कि कभी भी आ जाते हैं और बच्चे में फीवर कर सकते हैं। तो 6 से 8 बार अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो आपको चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम है, इसका मतलब है आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ रही है, बन रही है, बिकॉज दोज वायरल इन्फेक्शंस विल डेफिनेटली अट्यून द इम्यून सिस्टम के फ्यूचर वायरस इन्फेक्शंस ना हो। तो पहला तो कंसेप्ट ये है। तो अगर आपके बच्चे को 6-8 बार फीवर हो रहा है साल में तो उसको इग्नोर करें, बट देयर इज अ राइडर टू इट। अगर आपके बच्चे को सीरियस निमोनिया 2 बार या 2 बार से ज़्यादा हो रहा है 1 साल में तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आपके बच्चे को साइनस इन्फेक्शंस हो रही हैं 4 बार साल में तो उसको इग्नोर ना करें। और अगर आपके बच्चे को 8 से ज़्यादा बार इन्फेक्शंस हो रही हैं तो उसको इग्नोर ना करें। देन वी कैन सी कि हो सकता है कि इसमें कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, बट जनरली इम्यूनोडेफिशिएंसी होती नहीं है। एज फार एज द इम्यूनिटी इज कंसर्न, इम्यूनिटी बच्चे की हमें अगर परिपक्व रखनी है, परिपूर्ण रखनी है और उसको अगर हमें अच्छे से बना के रखना है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें बच्चे को प्रॉपर डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देनी है, सारे वाइटामिन उसके अंदर होने चाहिए, जो वाइटामिन रिकमेंडेड हैं वो आपको देने बड़े ज़रूरी हैं। और बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन्स, स्पेशली इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी एंड डी एंड आयरन एंड जिंक, दे आर रिक्वायर्ड। तो ये सब बच्चे को प्रॉपरली मिलेंगे। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेगुलर एक्सरसाइज। बच्चा स्किपिंग करे, जॉगिंग करे, स्विमिंग करे, भागे दौड़े, जो मर्जी करे, बट रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द इम्यूनिटी इन द चाइल्ड। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री। ये देखा गया है कि जब पॉजिटिव पेरेंटिंग रखते हैं, पेरेंट्स प्रेज कर रहे हैं, हमेशा इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को, तो भी क्या होता है कि बच्चे की वेलबींग बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है, बैलेंस डाइट लेता है और इम्यूनिटी उसकी अच्छी होती है। कीप योर चाइल्ड वेल वैक्सीनेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और डेफिनेटली आपको जो जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, रिकमेंडेड हैं, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके सारी वैक्सीन्स आप उसको दो। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड ट्राई टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड टिल 24 months of age. That will also increase the immunity of the child. That is extremely important. Environmental factor should also be controlled. अगर आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन अगर आप गंदा पानी ले रहे हैं, नॉन पैस्चराइज्ड मिल्क बच्चे को दे रहे हैं, एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग द इन्फेक्टिव एजेंट्स इन द बॉडी, तो इन्फेक्शन होगी। सो दैट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। स्पेशली रेस्पिरेटरी हाइजीन शुड ऑल्सो बी मेंटेन। घर में किसी को खांसी है, जुकाम है, मास्क पहन के रखें। तो ये एक तरह से 3 डायमेंशन में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, डाइट से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस फ्री उससे, और बाई प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस इन द चाइल्ड। तो इससे मुझे लगता है कि बच्चा आपका बीमार नहीं रहेगा या कम रहेगा। आई थिंक अंडर 5 years of age कॉमनली मदर्स को ब्लेम किया जाता है, यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, इतना फ्रीक्वेंटली फीवर आ रहा है, कोल्ड आ रहा है, कफ आ रहा है। सो नाउ द मदर्स नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड दे डोंट हैव टू टेक दैट ब्लेम, इट्स नॉर्मल। प्रियंका, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद मदर्स फॉर लास्ट सो मेनी डिकेड्स। व्हाट आई हैव फाउंड इज कि मदर को ब्लेम करना जो है ना, दैट इज नॉट गुड। दैट इज वेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, female has to be respected in the house. Absolutely. That is very important, and it is an important component of the parenting also. ये देखा गया है कि जिन घरों में मदर को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लव एंड अफेक्शन फ्लो कर रहा है, एग्रीएबल हैं लोग, रादर देन आर्गुमेंटेटिव हैं, एग्रेसिव नहीं है, अब्यूजिव नहीं है, ये देखा गया। बिकॉज चाइल्ड इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर देयर मदर्स, सो चाइल्ड कैन इमीडिएटली गेट
कि मेरे मदर के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है. सो दैट इज गोइंग टू हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, because the child starts taking the world view that this is an aggressive place, this is not a safe place, so he feels insecure. तो इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये देखा गया है कि वो insecure भी रहते हैं, inadequate भी रहते हैं और probably they are not happy and successful. तो इसलिए मदर्स की रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और ब्लेमिंग कंप्लेनिंग जो है वो मिनिमल होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर मदर्स, इवन फॉर द फादर्स एंड दिस थिंग. तो घर में अगर कंजीनियल एटमॉस्फेयर होगा तो बच्चे की मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी. So a study was conducted by CDC in 2022, जिसमें कि उन्होंने ये देखा कि ऑलमोस्ट 20% बच्चों को माइनर मेंटल इश्यूज हैं, डेविएशंस हैं, वो चाहे ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, ADHD है या सम काइंड ऑफ डिप्रेशन है. तो इस पे भी हमें ध्यान देना है कि बच्चे की अगर हमारे को मेंटल हेल्थ को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है तो द होम एटमॉस्फेयर शुड बी That's the most important thing, for sure. And I think ये बहुत ही एक wrong practice है, but बहुत common भी है across families and communities कि बच्चे की growth में कोई problem है, mother is to blame. Diet में कोई problem है, mother is to blame. वो frequently they're falling sick, mother is to be blamed. So as you rightly said, this has to stop because mothers तो यही चाहते हैं कि बच्चे healthy हों, happy हों, अच्छे से grow करें. So a very valid point. So doctor, another common thing जो बच्चे right after birth develop करते हैं is jaundice. So ये कितना concerning होता है और इसमें ऐसे क्या red flags हैं जो parents को पता है कि हाँ now there is this emergency situation और डॉक्टर का intervention ज़रूरी है. देखो, in newborns jaundice is very common. जी. तो न्यूबॉर्न्स के अंदर जॉन्डिस बहुत कॉमन होता है. उसके बड़े सारे रीजंस होते हैं. जब बर्थ होता है तो उसके बाद में RBCs जो हैं, एलिमेंट अब मैं बता रहा हूँ, RBCs बहुत टूटते हैं, बिलिरुबिन बहुत आता है और लिवर जो इमेच्योर होता है उतना हैंडल नहीं कर पाता. तो इट इज़ वेरी लाइकली कि उसका बिलिरुबिन बढ़ेगा, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं. सो इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन टू द ट्यून ऑफ 70 to 80% ऑफ द न्यूबॉर्न्स दे गेट जॉन्डिस. जी. इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं. जनरली जो है ये आता है 5 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद में चला जाता है. बट वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट बिकॉज इट कुड बी पैथोलॉजिकल ऑल्सो. और अगर जॉन्डिस एक लिमिट से ज़्यादा जाता है तो इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो. इट कैन लीड टू अ डिजीज कॉल्ड कर्निक्टस. ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है और दिक्कत करता है. अब किन बच्चों में हमारे को ध्यान रखना है जॉन्डिस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्पेशली द अर्ली ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस. 24 या 36 घंटे में अगर जॉन्डिस आ गया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. द मदर्स हु हैव नेगेटिव ब्लड ग्रुप और द मदर्स हु हैव O ब्लड ग्रुप एंड द बेबी हैज A और B ब्लड ग्रुप, इनमें हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है क्योंकि ABO इनकम्पेटिबिलिटी कैन हैपन और RH इनकम्पेटिबिलिटी कैन हैपन. इन प्री टर्म्स वी शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि प्री टर्म्स में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बड़ा कम होता है. तो अगर जॉन्डिस ज़्यादा होता है तो वो ब्रेन में ज़्यादा जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है. सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस वेयर शुड बी. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. G6 डेफिशिएंसी हो गई, अल्फा थैलेसीमिया, बहुत सारी बीमारियां जिनके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा. बट इन लेमन आई विल लाइक टू टेल यू कि जनरली जॉन्डिस 90% में बिना फोटोथेरेपी के ठीक हो जाता है. बट वी नीड टू कीप एन आई ऑन द जॉन्डिस कि ये एक लिमिट से ऊपर ना जाए. और अगर एक लिमिट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो इमीडिएटली स्टार्ट विद फोटोथेरेपी, इट गेट्स सेटल्ड. लेकिन अगर कभी कभी बच्चे हमारे पास आते हैं जो जॉन्डिस ही 30 बिलिरुबिन लेके आते हैं, तो इमीडिएटली वी हैव टू चेंज द ब्लड, व्हाट वी कॉल एज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. हम पूरे ब्लड को चेंज करते हैं. सो दिस ऑल्सो हैपन्स एंड कई बार हमारे को करना पड़ता है. तो इसलिए जॉन्डिस का समय रहते इलाज करना ज़रूरी है. और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब न्यूबॉर्न पीरियड है तो आप हर 2 या 3 दिन के बाद जैसे आपको पीडियाट्रिशियन बुलाए तो उस विजिट को मिस मत कीजिए. यू मस्ट गो टू द पीडियाट्रिशियन क्योंकि 2 दिन कई बार मैंने देखा आपने मिस कर दी और जॉन्डिस बड़ा हाई चला गया तो कई बार प्रॉब्लम होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ऑल्सो आई विल लाइक टू एडवाइज द पेरेंट्स दैट इनिशियल 1 year of life every month the child should be examined. That is important. Between 1 to 3 years of age आप 3 से 4 विजिट्स भी करते हैं, दैट इज गुड एनफ. एंड आफ्टर 3 years ऑफ एज एटलीस्ट एनुअल विजिट शुड बी देयर, जो कि हर बच्चे में होती है क्योंकि वैक्सीनेशन आप कराने जाते हैं तो ये सब होता ही है. लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम वी शुड बी एबल टू कैच anything sinistrous which is developing. So doctor, we talked about traditional practices और ऐसी ही एक practice है baby massage. So I think India is the only country जहाँ इतना rigorously ये practice follow की जाती है. आप from a doctor's point of view, what do you suggest? Should we really be so adamant about it? क्या इतना useful practice है? देखो, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको मैं ये बताऊंगा कि मसाज करने से पहली चीज़ तो नुकसान कोई नहीं है, नंबर 1. नंबर 2,
मसाज करने से कुछ यूजफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, जैसे जब हम मसाज करते हैं सो द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द बेबी जी स्ट्रेंथन्स, नंबर 1। नंबर 2, जब हम मसाज करते हैं तो बेबी थोड़ा लेस स्ट्रेस फ्री रहता है और नींद अच्छी आ जाती है, तो सो जाता है कंफर्टेबली। नंबर 3, थोड़ा सा स्किन भी सॉफ्ट रहता है, तो स्किन के इश्यूज भी थोड़े कम रहते हैं क्योंकि आप उसको ऑयल कर ही रहे हो, तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। टू सम एक्सटेंट शायद ये थोड़ी सर्कुलेशन को भी प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि मदर और बेबी की बॉन्डिंग भी हो रही है और हम मसाज भी कर रहे हैं, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। बट येस, देयर आर सर्टन रेड फ्लैग्स एंड राइडर्स ऑन दैट। ओके सबसे पहला तो ये है कि जब भी आप मसाज करें तो चाइल्ड शुड बी कंफर्टेबल, चाइल्ड शुड नॉट बी सिक। सेकेंडली, आप जिस भी ऑयल से मसाज कर रहे हैं, कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, तो यू कैन पुट अ पैच ऑफ ऑयल ऑन द स्किन ऑफ द बेबी कि ये एलर्जी तो नहीं करता, वो भी हमें देख लेना चाहिए। एंड मसाज शुड बी जेंटल। कई बार क्या होता है, हम बहुत तेज़ हाथ से मसाज करते हैं, वो करते हैं, सो दैट कैन हार्म द चाइल्ड। सो दीज आर फ्यू रेड फ्लैग्स ऑन टू दिस। एंड हैविंग सेड दैट, तो मसाज करना जो है वो कोई ऐसी बुरी प्रैक्टिस नहीं है। जी, देयर आर सम मदर्स जो वर्किंग हैं या उनका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, उनके लिए डेली मसाज पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक एज अ मदर यू फील गिल्टी कि आप वो प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है अगर आपने इतना मसाज नहीं दिया बेबी को? देखिए, बेबी को कोई ना कोई तो केयर कर ही रहा होता है घर में जी, क्योंकि जो इतना छोटा बेबी है, इवन इफ द मदर इज वर्किंग, तो वो पीछे बेबी को किसी के पास तो छोड़ के जाती हैं, चाहे वो उनकी आया है या चाहे उनकी मदर इन लॉ हैं या मदर हैं या जो भी है, सो दे कैन टेक केयर ऑफ दिस ड्यूटी ऑल्सो। और अगर ऑल्टरनेट डे पे भी वो मसाज करती हैं, इवन दैट इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर दैट मैटर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दे आर टेलर मेड, दे शुड बी फाइन ट्यून्ड एज पर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द मदर, कंफर्ट ऑफ द चाइल्ड एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। एंड आई थिंक अनदर वेरी बिग कंसर्न और एक सिचुएशन है जो थोड़ी पैनिक क्रिएट करती है, दोज आर द डायपर रैशेस फर्स्ट 6 months में। सो उसको पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, डायपर अगर हम यूज़ कर रहे हैं जी, तो सबसे पहली चीज़ है, डायपर शुड बी चेंज एवरी 2 to 3 आवर्स। वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, अगर डायपर वेट हो जाता है, मैसरेट होता रहता है, वहीं स्किन पे पड़ा रहता है, जबकि डायपर में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल हो या यूरिन हो, लेकिन फिर भी वो वेट रहता है, तो वहाँ मैसरेट होता रहता है, तो डायपर रैश हो सकता है। सो द बेस्ट आइडिया इज़ 2 to 3 आवर्स के बाद आप डायपर को चेंज कर दो, वेदर इट इज़ वेट और इट इज़ नॉट वेट। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, फिर भी अगर डायपर रैश होता है तो आप उसके ऊपर हम डायपर रैश क्रीम लगा देते हैं, डायपर्स को अवॉइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड गिव दी स्किन एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ ऑल्सो। तो हमारे को क्या है कि बीच बीच में डायपर फ्री टाइम भी रखना चाहिए कि बच्चे को हमने डायपर फ्री रख दिया है थोड़ी देर के लिए, सो दैट द स्किन इज ऑल्सो ब्रीदिंग एंड इट इज़ नॉट गेटिंग मैसरेटेड इन द डायपर ऑल द टाइम। जी, बट हैविंग सेड दैट, डायपर के लिए ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर डायपर रैश नहीं हो रहा है और बेबी अच्छे से चल रहा है तो यू कैन यूज डायपर्स। एक अनदर कंसर्न डॉक्टर जो बहुत कॉमन नहीं है बट कैन बी क्वाइट कंसर्निंग इज बेड वेटिंग। और आई थिंक यंग एज में तो नॉर्मल है, बट किस एज में पेरेंट्स को कंसर्न होना चाहिए कि बेड वेटिंग नॉर्मल नहीं है? देखिए, 6 साल से छोटा बच्चा अगर आपकी बेड वेटिंग कर रहा है, वी नीड नॉट बॉदर मच। आफ्टर द एज ऑफ 6 years वी शुड ट्रीट। ठीक है, 5 साल के बाद में पेरेंट्स को थोड़ा सा उसको बेड वेटिंग की मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन 6 साल तक बेड वेटिंग वी कैन टेक इट नॉर्मल। बट इफ इट इज़ परसिस्टिंग बियॉन्ड द एज ऑफ 6 years वी शुड ट्रीट फॉर द बेड वेटिंग। अब बेड वेटिंग को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है, बेड वेटिंग होती क्यों है। जी, बेड वेटिंग में क्या होता है, कई बार ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है, रात को यूरिन 200 ml बनना है, ब्लैडर कैपेसिटी 100 है, तो इट इज़ लाइकली टू आउटफ्लो। ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इमेच्योर होती है, तो ब्लैडर कैन नॉट हैंडल वाटर, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एक हार्मोन होता है ADH होता है, उसकी कमी से भी कई बार बेड वेटिंग होती है। कई बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे भी जो बेड वेटिंग है वो ज़्यादा होती है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज। एंड इफ़ द चाइल्ड इज स्ट्रेस्ड, अगर हम उस वक्त बेड वेटिंग के लिए उसको टोक रहे हैं तो भी स्ट्रेस से ये प्रेसिपिटेट हो सकती है। लेकिन कई बार मेडिकल रीजंस भी होते हैं बेड वेटिंग के, जैसे डायबिटीज़ हो गई। जी, तो कई बार जो है, अगर बच्चा बार बार यूरिन कर रहा है, उसका एक बार शुगर कर चेक करा के देख सकते हैं कि भाई यूरिन इन्फेक्शन हो गई, तो यूरिन इन्फेक्शन में भी जो है वो होती है। तो ये कई बार रीजंस होते हैं बेड वेटिंग के, लेकिन
जनरली बेड वेटिंग, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर हम पेरेंट्स को समझा देते हैं कि ये दिस विल गो अवे विद टाइम, दी सिम्टम्स विल मेल्ट डाउन, डोंट पुट द स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड, बच्चे को काउंसिल करो, उससे ठीक हो जाते हैं। नहीं होते तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, उसमें बेड वेटिंग अलार्म्स आते हैं, तो वो हम बच्चे के लगा देते हैं, और जैसे ही वो बेड होता है तो अलार्म एकदम शूट अप हो जाता है, बच्चा उठ जाता है, तो बेड वेटिंग। एंड देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस व्हाट वी टेल टू द पेरेंट्स के रात को आप इसको थोड़ा लिक्विड कम दो सोने से पहले, और सोने से पहले इसको यूरिन करा के करो। सुबह अगर उसने यूरिन कर भी दिया है तो बिना उसकी नॉलेज के आराम से आप शीट को चेंज कर दो, सो दैट द चाइल्ड डजंट फील स्ट्रेस्ड। अगर हम स्ट्रेस नहीं करते तो चला जाता है। इसके अलावा देन मेडिसिन्स दे कम, जनरली उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मेडिसिन्स आती हैं जो कि हम उसको दे सकते हैं, एंड दे आर क्वाइट इफेक्टिव, जिससे कि वो बेड वेटिंग जो है वो कंट्रोल हो सकती है। नाउ व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन बेड वेटिंग? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू अंडरस्टैंड कि अगर वो दिन में भी यूरिन कर रहा है और रात में भी कर रहा है, देन इट इज़ नॉट नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। व्हाट आई एम टॉकिंग इज नॉक्टर्नल, जो रात को कर रहा है। दिन में भी कर रहा है तो हो सकता है उसके अंदर कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो किडनी में या यूरेटर में किसी में, तो दिस इज़ नॉट। अगर यूरिन कर रहा है उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, इट मीन्स देयर कैन बी इन्फेक्शन। यूरिन करते हुए उसको डिसयूरिया हो रहा है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो सकती है। डिसयूरिया मीन्स अगर उसको पेन हो रहा है यूरिन करते हुए, यूरिन में ब्लड आ रहा है, देन इट इज़ नॉट गुड। बेड वेटिंग कर रहा है और सिम्टम्स हैं, खाना भी ज़्यादा खा रहा है, पानी भी ज़्यादा पी रहा है, मे बी चाइल्ड इज डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे को केयरफुल रहना बड़ा ज़रूरी है। और एक बार बच्चा ड्राई हो गया, साल के बाद फिर बेड वेटिंग शुरू कर दी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। तो उसमें भी कई बार सेकेंडरी कॉज होता है विच वी नीड टू ट्रीट। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बेड वेटिंग हो गई, थंब सकिंग हो गई, फॉर दैट मैटर नेल बाइटिंग हो गई, दे आर टू सम एक्सटेंट दे आर ऑल्सो साइकोसोशल। तो जितना बच्चे को कूल रखेंगे, जितने हम कूल रहेंगे, पेशेंटली रहेंगे, एंड वी आर ऑल्सो एश्योर्ड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम दीज सिम्टम्स आर गोइंग टू मेल्ट। तो क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगे, तो अगर मदर को एश्योरेंस होना कि इसमें कुछ नहीं है, मेल्ट हो जाएंगे, तो मदर विल ऑल्सो बी काम। सो कूल, काम एंड पेशेंट वे वी शुड डील विद दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन। सो एक और क्वेश्चन डॉक्टर हमको कम्युनिटी से आया है, वेयर द चाइल्ड इज़ ऑलमोस्ट 12 years ऑफ एज, और पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न है बेड वेटिंग को लेके। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, देव सीन सो मेनी डॉक्टर्स ऑल्सो, बट वो बेड वेटिंग स्टॉप नहीं हो रहा है। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव चाइल्ड, रेगुलरली ही प्ले स्पोर्ट्स एंड डाइट भी अच्छी है, वेरी इंटेलिजेंट किड, बट ये एक कंसर्न है जो वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बेड वेटिंग का जो कंसर्न है ना, वो जनरली जो मेरे अपना प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, बड़ा कंसर्न नहीं है। We are able to control bed wetting. We are able to control bed wetting almost, you can say, in 99% of the cases. It is not a very big job because we have a wonderful medicine. वो nasal spray की फॉर्म में आती है, वो हम देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। But one thing is very important which I have seen out of my experience, कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना कि बेड वेटिंग नहीं जा रही, बेड वेटिंग नहीं जा रही, बेड वेटिंग नहीं जा रही, कहीं ना कहीं बच्चे को भी साइकोसोशल प्रेशर रहता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट ए डिजीज फॉर दैट मैटर, एंड सूनर और लेटर इट हैज़ टू गो अवे, एंड दे हैव टू बी कूल एंड काम, एंड दे शुड कंसल्ट अ गुड पीडियाट्रिशियन। एंड आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी रीजन कि बेड वेटिंग नहीं जाएगी। अगेन हैविंग सेड दैट, दे शुड ऑब्वियसली, अगर इतने देर से बेड वेटिंग चल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बेसिक इन्वेस्टिगेशन सब करा ली होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट की पूरी स्कैनिंग करा ली होगी, यूरिन का कल्चर, रूटीन माइक्रोस्कोपी, इन्फेक्शन दूर कर दिया होगा, या जो मैंने बीमारियां बताई जिनके साथ में बेड वेटिंग एसोसिएटेड है, चाहे वो डायबिटीज़ है या कोई भी है, उनको सब कुछ ये रूल आउट करके बैठे होंगे। अगर ये सब कुछ रूल आउट कर दिया एंड इट इज़ ओनली फंक्शनल बेड वेटिंग, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम। दे शुड कंसल्ट अ गुड पीडियाट्रिशियन। डेस्मोप्रेसिन नाम की एक दवाई आती है जो कि बड़ी अच्छी होती है, नेजल स्प्रे से हम देते हैं, डेस्मोप्रेसिन। ओके, सो वो आप नेजल स्प्रे की फॉर्म में आप बच्चे को डालो तो वो कंट्रोल कर देगी, उसका बच्चे का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके वी कैन टेपर इट ऑफ। जी, अनदर सिमिलर प्रॉब्लम इज़ थंब सकिंग, जो बहुत कॉमन है बच्चों में, बट आई थिंक बियॉन्ड एन एज ये कंसर्निंग हो जाता है कि बच्चे छोड़ नहीं रहे हैं। क्या ये साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, और अगर हम फोर्सफुली बच्चे से छुड़ाते हैं तो कैन इट अफेक्ट देम इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली? सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, नेल बाइटिंग कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, या बच्चे को कहीं हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मदर्स गिल्टी फील करती हैं या पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कोई बिहेवियर में गड़बड़ थी, जो बच्चे को ये विकार आने शुरू हो गए हैं, या ये डेविएशन आनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी विकार तो नहीं है लेकिन डेविएशन आनी थोड़ी शुरू हो गई है इन देयर बिहेवियर। जनरली ऐसा होता नहीं है। थंब सकिंग बच्चा करता है मे बी बिकॉज ऑफ बोर्डम, मे बी बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, एंड एट टाइम्स इफ चाइल्ड फील्स लिटिल
लिटिल इनसिक्योर ऑल्सो, तो थोड़ा थम सकिंग करता है, लेकिन 4 साल की उम्र तक थम सकिंग के लिए बहुत हम बॉदर करते नहीं हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो अपने आप जाके ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की थम सकिंग नहीं जाती है, सो फ्रॉम 3.5 years ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट एंगेजिंग द चाइल्ड्स थम इन सम अदर एक्टिविटीज़, कि भैया पेंटिंग कर ले, थम अवेलेबल ही नहीं है, पेंटिंग कर ले, ये कर ले, सो थम की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम कर देते हैं। बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं, 4 साल का बच्चा कम्युनिकेशन समझ सकता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन बच्चे ने थम सकिंग नहीं की, वाह आप तो बड़े हो गए, यू हैव बिकम अ बिग बॉय और अ बिग गर्ल, आप तो थम सकिंग ही नहीं कर रहे हो, दिस इज़ वेरी गुड, आज तो पूरा दिन इसने नहीं किया। You can give rewards in the form of maybe stars or maybe some signatures or something, so that the child gets a positive reaffirmation on that. तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो है, अगर फिर भी लगता है कि 4 साल के बाद, स्पेशली 5 साल के बाद भी अगर थम सकिंग चलती है, क्योंकि थम सकिंग अगर चलती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर थम सकिंग चल रही है तो कई बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कैलोसिटीज़ बन सकती हैं, डेंटल मैलएक्लूजन्स हो सकता है, ओवरबाइट हो सकती है, अंडरबाइट हो सकती है, तो चेहरे का थोड़ा सा वो चेंज हो सकता है, दांत बाहर आ सकते हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, डेंटल मैल अलाइनमेंट कैन अकर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हम अगले स्टेप्स लेते हैं। हो सकता है हमें बिहेवियर थेरेपी थोड़ी सी बच्चे की करनी पड़े, और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहे तो फिर देन वी कैन पुट अ थम गार्ड और अ पैलेट गार्ड टू temporarily stop this habit so that it becomes a habit in the long run that the child doesn't suck thumb. ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, लोनलीनेस, बोर्डम और इन सब से थोड़ा ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती है। सो पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस ज़्यादा हों, इनकी स्किल डेवलपमेंट करें जी। सो इन द लॉन्ग रन दो स्किल्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू देम। So doctor, you mentioned कि sleep बहुत important factor है when it comes to building the immunity of the child. और स्लीप एक बहुत ही ओवरवेलमिंग टॉपिक भी है फॉर न्यू मदर्स, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि बच्चे का स्लीप साइकिल क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए। टेल मी मोर अबाउट इट। देखो, स्लीप के बारे में बड़ी क्लियर आपको बात बताऊंगा। जो आपका न्यूबॉर्न है वो 14 से 17 घंटे सोएगा जी। जो 1 से 3 साल का बच्चा है वो मोटा मोटा आप ये लगा लो 11 से 14 घंटे सोएगा, और द चाइल्ड हु इज़ बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज वो 10 से 13 घंटे सोएगा, और उसके बाद जो है 9 से 12 घंटे का स्लीप साइकिल होता है। ये एक कंफर्टेबल स्लीप है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि स्लीप के अंदर वेरिएशंस हैं। अगर न्यूबॉर्न 14 घंटे सो रहा है तो भी ठीक है, 17 घंटे सो रहा है तो भी ठीक है, बाई चांस 18 भी होते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो देयर इज़ ए रेंज फॉर स्लीप। स्लीप की रेंज से अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल इशू चल रहा है वो ये है कि मदर्स हमेशा ये कहती है कि डॉक्टर साहब इसकी रात को स्लीप डिस्टर्ब होती है और ये ठीक से सोता नहीं है। नाउ स्लीप इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। तो उसके लिए हमें ये बड़ा खास ध्यान रखना है कि उनको दिन में खूब खिलाओ, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराओ, दिन में ना सोए तो बेटर है ताकि वो रात को अच्छे से सोएगा। दूसरा ये है कि रात को सोने से पहले स्क्रीन नहीं दिखानी। ये बहुत गलती करते हैं। कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए स्क्रीन और बच्चे की स्लीप में जी। रात के स्लीप के टाइम चाइल्ड शुड बी रिलैक्स्ड, चाहे उसको स्टोरी टेलिंग टाइम कर दो या चाहे मदर उसको हक कर दे या फादर उसको हक कर दे, प्यार कर दे और उसको अपने अच्छे से रिलैक्स्ड वे में। टेम्परेचर ऑफ द रूम शुड बी थर्मोन्यूट्रल। अगर ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा गर्म है तो बच्चा परेशान होगा, ब्लैंकेट की ज़रूरत है वो दे दो, शीट की ज़रूरत है वो दे दो, बट चाइल्ड शुड बी इन अ थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीपिंग टाइम एंड वेकअप टाइम शुड बी सेम जी। क्या होता है, संडे को तो 12 बजे उठ रहा है और मंडे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जो है बच्चे को सुबह 6 बजे उठा के स्कूल भेजना है, उससे भी स्लीप साइकिल जो है काफ़ी डिस्टर्ब होती है। एंड अबव ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन आर गोइंग टू लर्न व्हाट दे आर सीइंग, नॉट व्हाट वी आर प्रीचिंग देम। हम उसको जितना मर्जी कहें तो जल्दी सो जाओ, वो सो जाओ, वो नहीं करेगा, वो मदर्स के ही रूटीन पे आएगा। बिल्कुल। तो मदर और फादर को भी जो है वो स्लीप टाइम अपना एडजस्ट करना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि उस वक्त वो भी अपना अच्छे से सो जाए और बच्चे को भी सो दें। सो डॉक्टर, यू मेंशन स्क्रीन टाइम। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। सो स्क्रीन टाइम के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों के ऊपर, आई साइट ले लें या मेंटली ले लें, और कैसे पेरेंट्स इसको टैकल करें? देखो, स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम से कम होना चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चे में 0 होना चाहिए। 2 साल के बाद जो 1-1.5 घंटा 2 घंटे हम स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। बट द राइडर विद दैट स्क्रीन टाइम इज दैट इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द पेरेंट्स। वॉट एवर प्रोग्राम द चाइल्ड इज सीइंग शुड बी फर्स्ट सीन बाय द मदर एंड देन द चाइल्ड शुड बी अलाउड। तो स्क्रीन टाइम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 1 से 2 घंटे नहीं होना चाहिए,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2023 में CDC ने स्क्रीन टाइम के ऊपर स्टडी की थी, तो ये देखा गया अमेरिकन बच्चा ऑन एन एवरेज अभी 2023 में 2 साल पहले 7 घंटे स्क्रीन देखता है वो। सो विच इज़ माइंड बॉगलिंग। आंखों के ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ता है, और अगर गलत प्रोग्राम देख रहा है तो पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल, प्राइवेसी सेटिंग्स लगाएं, कोई अडल्ट कंटेंट बच्चा गलती से ना देख ले, कोई एग्रेसिव कंटेंट ना देख ले, क्योंकि चाइल्ड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन what is real violence and what is virtual violence। तो बच्चे का तो माइंड ही उतना डेवलप नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करके रखना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हमें स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना है तो स्क्रीन की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए बच्चे के पास, मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ होनी चाहिए जिसमें स्क्रीन की तरफ ध्यान ही ना जाए। आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, बिकॉज अनलेस वी बाइंड द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जी, जब तक हम उसको बाइंड नहीं करेंगे किसी चीज़ में, वो तो स्क्रीन की तरफ चला जाएगा। जी जी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आने वाले टाइम में वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बट हैविंग सेड दैट, स्क्रीन के भी अपने फ़ायदे हैं। स्क्रीन टाइम कैन बी यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स। बच्चे अपनी फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, अपनी नानी को दे सकते हैं जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, या स्क्रीन में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दे कैन यूज़ द स्क्रीन फॉर देयर एडवांटेज ऑल्सो फॉर दैट मैटर। और बहुत सारे कार्टून वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं, वो देखने से बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, कुछ समझ आती है, मॉरल ऑफ स्टोरी समझ आता है, तो कई चीज़ें ठीक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन नॉट कम्प्लीटली टेक दिस अवे, We cannot इट्स पार्ट ऑफ आवर completely. लाइफ्स नाउ, Yeah. बट वही है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से और एक माइंडफुल तरीके से उसका यूसेज होना चाहिए। बिल्कुल। आपने मेंशन किया ADHD, डिसलेक्सिया, और दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स आपके पास लेके आते हैं वो फोकस इश्यूज़, कि बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज़ पे। सो ऐसे केसेस क्यों डेवलप होते हैं डॉक्टर, और पेरेंट्स उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक फोबिया कह लो या गिल्ट फैक्टर होता है। जब भी कभी बच्चा ADHD से डायग्नोज होता है या ऑटिस्टिक डायग्नोज होता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है। प्रियंका, आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अब इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल्स, रिचर्ड ब्रैंसन का आपने नाम सुना होगा, साइमन बेल का आपने नाम सुना होगा, जॉनी डेप का नाम सुना होगा। दे हैव पर्सनली कन्फेस्ड that they have gone through ADHD symptoms। रिचर्ड ब्रैंसन ने तो ओपनली कहा है कि मेरे को ADHD की वजह से मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ ऑफ बिकमिंग अ बिग एंटरप्रेन्योर। वर्जिन एटलांटिक और जिसकी ये सारी कंपनीज हैं, तो उसने कहा मुझे बड़ा फायदा हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज आई वॉज रेस्टलेस, आई वॉज एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स फास्ट, आई वॉज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो मेरे को फायदा। तो पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, अगर बाई चांस आपके बच्चे को ये डायग्नोसिस भी हुई है, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन कोलैबोरेशन विद पीडियाट्रिशियन और स्पीच थेरेपिस्ट और occupational therapist or behavior therapist. We can really do wonders with the child, and the basic thing is early diagnosis. They should be cool, calm and patient, and they should have a faith कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक से जो है आगे चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों में अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पेरेंट्स खुद डायग्नोज ना करें। मदर मेरे पास आ जाती है कि जी इसको तो ऑटिज्म है, इसको तो ADHD है। When I examine, there is no feature of ADHD. So any child who is hyperactive, we can't call the child as ADHD. ADHD की diagnosis बनाने के लिए there are certain criteria. अगर बच्चा घर में हाइपर एक्टिव है, स्कूल में नहीं है, this is not ADHD. अगर बच्चा स्कूल के अंदर हाइपर और टीचर आपको कंप्लेन कर रही है, घर में बच्चा कूल एंड काम है, इट इज़ नॉट ADHD. सो फॉर दैट मैटर यू नीड टू टेक ए प्रॉपर ओपिनियन। ओवर डायग्नोज भी नहीं करना और इसको मिस भी नहीं करना। जी जी। ऑटिज़म के केस में डॉक्टर, कब से उसके साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स को, और कब उन्हें डॉक्टर्स को रीच आउट करना चाहिए? देखिए, ऑटिज़म के लिए 18 से 24 महीने के आसपास हम लोग थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, कि कुछ फीचर्स हैं ऑटिज़म के विच आई विल टेल यू। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपसे बात कर रहा है लेकिन आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, और अगर आई कांटेक्ट भी कर रहा है तो कम कर रहा है। चाइल्ड इज अनेबल टू कम्युनिकेट, child is unable to channelize his feelings, his or her feelings. Child is unable to understand your gestures. या चाइल्ड इज मोर कंफर्टेबल बीइंग आइसोलेटेड, अकेला बैठता है और रिपीटेटिव एक्टिविटीज करता है। अकेला बैठ के कार्ड से खेलता रहेगा घंटों, अकेला बैठ के थ्रेड से खेलता रहेगा घंटों। तो इसका मतलब है कि वो अकेला अलोन ही इज बैटिंग। जनरली इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन दैट देयर इज डिले ऑफ स्पीच। इसीलिए हम कहते हैं इफ योर चाइल्ड एट द एज ऑफ 18 months इज नॉट स्पीकिंग इवन ए सिंगल वर्ड, कॉन्टेक्ट योर पीडियाट्रिशियन। तो इनके अंदर जनरली डिलेड स्पीच होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है, अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी होती है।
डायलॉग शुरू करने में भी दिक्कत होती है और कन्वर्सेशन को आगे ले जाने में भी थोड़ी इनको दिक्कत होती है। जी। कई बच्चे जो है रेपिटेटिव मूवमेंट करते रहेंगे, फ्लैपिंग ऑफ हैंड करते रहेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. Doctor will make a diagnosis. You will not make a diagnosis, and then they will, chart out the program for the child so that the child doesn't, keeps this deviation in check. So, doctor, are there any developmental milestones जो पेरेंट्स को चेक में रखनी चाहिए कि एट दिस एज दिस इज द माइलस्टोन चाइल्ड शुड कवर, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमको वॉचफुल रहना चाहिए? ये प्रियंका आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये भी इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम मी बाय द मदर्स। जी। देखिए, 4 महीने के आसपास रीजनेबली हेड होल्डिंग आ जाती है। 5 महीने के आसपास बच्चा विद सपोर्ट बैठने लग जाता है। ओके। 7 महीने के आसपास बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाता है। 10 मंथ्स के आसपास बच्चा क्रॉलिंग करनी शुरू कर देता है। 9 मंथ्स पे क्रीपिंग पेट के हिसाब से चलेगा, 10 मंथ्स के ऊपर क्रॉलिंग करनी शुरू कर देता है। बाई द एज ऑफ 11 to 12 मंथ्स बच्चा अपने आप पकड़ के खड़ा होना शुरू हो जाता है और 12 महीने के आसपास पकड़ के चलना भी शुरू कर देता है। ओके। बाई द बिटवीन 13 to 15 मंथ्स चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन हिज और हर ओन। वो चलना शुरू कर देता है। और जहाँ तक स्पीच का तल्लक है, 1 साल के ऊपर 10 महीने के ऊपर बच्चा एक वर्ड बोलेगा बट विदाउट मीनिंग। आपको भी मम्मा बोलेगा, उसको भी सबको मम्मा ही बोलेगा। लेकिन at 1 year of age, child will speak 2 to 3 words but meaning. जी। पापा को पापा, मम्मी को मम्मी। उसके बाद में 15 महीने से 18 महीने के बीच में उसकी वोकैबुलरी थोड़ी डेवलप होगी तो वो 5 से 10 वर्ड्स और बोलने लग जाएगा। 18 महीने के बाद से लेके 24 महीने तक 2 वर्ड्स को यूनाइट करना शुरू कर देगा। दे लो, ले लो, खा लो, पी लो, these type of things. Now my clear message to the mothers is that if your child has not started sitting by the age of 9 months, child has not starting babbling sounds by the age of say 6 months, if the child has not started walking by the age of 18 months, and if the child is not speaking even a single word by the age of 18 months, and if the child is not uniting 2 words between the age of 24 months to 30 months, then you should consult your pediatrician. ओके। सो डॉक्टर, पेरेंट्स को एक ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि बेबीज़ को वॉकर्स दें या नहीं दें। क्या वॉकर्स यूज़ होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, वॉकर शुड नॉट बी गिवन। उसका रीज़न है, जनरली हम लोग वॉकर्स इसलिए देते हैं कि शायद हमारे दिमाग में होता है बच्चा पहले चलना शुरू कर देगा। जी। सो वॉकर उसमें ज़्यादा हेल्प नहीं करता। बच्चे का नॉर्मल माइलस्टोन है, वो अपने नॉर्मल टाइम के ऊपर वॉक करना शुरू कर देगा और इसके लिए हमारे को वॉकर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वॉकर के साथ एक दिक्कत होती है। अगर हम बच्चे को वॉकर देते हैं तो लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स कैन हैपन। व्हाट हैपन्स इज, जब हमने वॉकर पर बैठा दिया, वो चलते चलते किचन में चला जाएगा, कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा देगा, चलते चलते ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर कि मेडिसिन पड़ी हैं, कोई मेडिसिन खा लेगा, चलते चलते पेट पे जा सकता है, सीढ़ियों में जा सकता है, गिर सकता है। एंड बाय द टाइम मदर रियलाइजेस कि ये गिरने वाला है, जब तक आप पहुँचोगे बच्चा गिर जाता है। जी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये यूएसए में स्टडी हुई है 1990 से लेकर 2023 के बीच में 230,000 एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड ओनली बिकॉज ऑफ वॉकर। ओह माय गुडनेस। So over a period of these 33 years, so many accidents have happened. So they are not recommended, frankly speaking. हमने माइलस्टोन्स की बात करी, ऐसे ही आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या कोई रेगुलर चेकअप्स हैं जो बच्चे के लिए रेगुलरली होने चाहिए? फॉर एग्जांपल डेंटल हेल्थ या फिर आई साइट चेकअप्स। सो वो क्या चेकअप्स हैं जो पेरेंट्स को रेगुलरली फॉलो करने चाहिए? डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारे चेकअप्स होने चाहिए एज पर विद द स्केड्यूल ऑफ योर पीडियाट्रिशियन। जैसे बर्थ के ऊपर तो हम पूरे चेकअप्स कर लेते हैं, जो मैंने बताया। हम ऑडिटरी उसका ईयर चेक करेंगे, एक बार आई चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद अब आई चेकअप्स पे आते हैं। 6 मंथ्स पे एक आई चेकअप होना चाहिए, 3 इयर्स पे होना चाहिए। इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम है तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन 6 मंथ्स और 3 ईयर पे आई चेकअप होना बड़ा जरूरी है। वी कैन सी द विजुअल एक्यूटी ऑफ द चाइल्ड एट द एज ऑफ 3 इयर्स। उसके बाद हम ईयरली या 2 ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एडवाइजेस यू, वो चेकअप होना चाहिए। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चेकअप होना बड़ा जरूरी है। रेगुलर हम अपने बच्चे के वेट को देखेंगे, ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए, अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए। हाइट को देखेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स हमें हेड सर्कमफ्रेंस को भी नापना बहुत ज़रूरी है। एट बर्थ द हेड सर्कमफ्रेंस इज 35 एंड एट 1 ईयर इट शुड बी बिटवीन 45 to 47। इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर वो 47 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब हेड के अंदर कोई प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। इसके अलावा हमारे को रेगुलर वाइटामिन डेफिशिएंसीज
एंड मिनरल डेफिशिएंसी के लिए देखना पड़ेगा। जैसे एनीमिया बच्चे बहुत कॉमनली डेवलप करते हैं, Yes. सो एनीमिया के लिए एट द एज ऑफ 6 months वी शुड स्टार्ट आयरन एट द एज ऑफ 4 months, जैसा मैंने बताया, उसको एनीमिया के लिए देखें। देन वी शुड सी फॉर द साइंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि रिकेट्स डेवलप हो जाती है, तो उसको हमें मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह से ही हमारे को ऑडिटरी एग्जामिनेशन बड़ी ज़रूरी है, कान से बच्चे को ठीक से सुन रहा है कि नहीं। उसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए ऑटिस्टिक बिहेवियर तो नहीं डेवलप कर रहा है, ADHD तो नहीं कर रहा, स्पीच डिले तो नहीं उसको हो रही है, डिसलेक्सिया तो नहीं हो रहा। जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो डिसलेक्सिया डायग्नोज ही नहीं होता। बच्चे बेचारे कि भाई ये पढ़ता नहीं और बेचारे परेशान होते रहते हैं, और बाद में पता चलता है दे हैव डिसलेक्सिया। Yeah. It is difficult for them to distinguish between P and Q, difficult to distinguish between B and D. Spelling mistakes are there, careless mistakes are there. So, dyslexia. तो इन सब चीज़ों की हमारी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और स्क्रीनिंग के वक्त हमें पता चल जाता है अर्ली स्टेज पे कि इसमें ये दिक्कत आ रही है। सो एट द अर्लीस्ट टाइम वी कैन इंस्टीट्यूट द ट्रीटमेंट सो दैट ये ना हो। प्यूबर्टी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, डिलेड प्यूबर्टी तो नहीं है, अर्ली प्यूबर्टी तो नहीं है, गायनेकोमेस्टिया तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। So as per with the age and the status of the child, we should keep on regularly examining the child. Now coming to a very important topic, vaccination. I know parents जो vaccination में believe नहीं करते, and there's a whole set of group of people जिनको लगता है कि vaccination is a myth, नहीं फॉलो होना चाहिए। What do you have to say about देखो, that? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, must have delivered more than 25,000 30,000 बेबीज और दिस थिंग। ये देखो, इस तरह का पेशेंट मेरे पास बहुत कम आया है कि जी हम वैक्सीनेशन ही नहीं देंगे। सरप्राइजिंगली 2 months बैक देयर वाज अ पेशेंट हु सेड कि हम डॉक्टर साहब वैक्सीन नहीं देंगे। फिर मैंने उसे बहुत कन्विंस किया, बहुत स्टडीज़ दिखाई, तो उसे मान लिया। इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर, मतलब हमें वैक्सीन देने के लिए उन्हें समझाना पड़ेगा। इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। यस, आई एग्री एंड आई रिस्पेक्ट योर ऑब्जर्वेशन के कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन देनी चाहिए। बहुत सारे मिथ्स हैं वैक्सीनेशन के साथ में कि इससे ऑटिज्म डेवलप होता है। नो, इट डजंट लीड टू ऑटिज्म। नाउ द स्टडीज हैव शोन वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली सेफ। ये होता है इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होता है, नो, देयर इज नो टॉक्सिक मटेरियल। ये भी होता है कि दे आर नॉट वेल स्टडीड। यू विल बी सरप्राइज टू नो 10 साल का पूरा ट्रायल होता है बिफोर द वैक्सीन कम्स टू द मार्केट। So they do complete trial on the vaccine. They see the side effects. They weigh the side effects to the preventive capability of that vaccine. तभी तो मार्केट में आएगी, ऐसे कैसे आएगी? तो वो वैक्सीन का भी वो नहीं है। तो ये तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में है, एंड वी शुड स्प्रेड अ मैसेज दैट वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, एंड स्पेसिफिकली दोज वैक्सीन्स विच आर फॉर। अब ये देखो, छोटी सी चीज़, मुझे याद है व्हेन आई वाज अ हाउस सर्जन, हम अपनी इमरजेंसी में 2 से 3 पोलियो एडमिट करते थे। आई एम टॉकिंग वे बैक इन से 84-85, पोलियो वॉज वेरी रैम्पेंट। वैक्सीन की वजह से तो पल्स पोलियो प्रोग्राम से वैक्सीन से चला गया। फॉर दैट मैटर टेटनस नियोनेटोरम, जो नियोनेट्स के अंदर टेटनस होती थी, वो चली गई बिकॉज ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ टेटनस। सो वी मस्ट एजुकेट द पब्लिक कि भैया वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है, और अगर नहीं लगवाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी आपको। जी, इसका टाइमली स्केड्यूल फॉलो करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। टाइमली शेड्यूल वी हैव टू फॉलो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, सो दे शुड नॉट फील गिल्टी। अगर आप मिस भी कर गए हैं डेट को, 2 महीने हो गए, डोंट वरी, यू कम, वी विल वैक्सीनेट द चाइल्ड। कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा, बट वो एक बार मिस करने के बाद में वंस द इट इज डीरेल्ड, सो व्हाट दे डू इज दे डोंट कम टू अस कि नहीं अब तो वैक्सीन ही हमने मिस कर दी, वो कर दी। नो, डजंट मैटर, you come and get the other vaccinations done, और we will reschedule your vaccine. हम दोबारा से स्केड्यूल कर देंगे कि हम इसको ये देंगे, इस तरह से देंगे, वो देंगे। और जो बेसिक वैक्सीन्स हैं, इट इज़ वेरी गुड। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी वैक्सीन्स दे रही हैं। तो बर्थ के ऊपर हम BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी देते हैं। उसके बाद 6 weeks, 10 weeks एंड 14 weeks के ऊपर हम पूरे वैक्सीन्स का एक पैकेज देते हैं, विच इंक्लूड्स रोटा वायरस, IM दिस थिंग, पोलियो, ओरल पोलियो, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV एंड हेपेटाइटिस। तो इसका पूरा हम वो देते हैं 6, 10 और 14 weeks के ऊपर। उसके बाद में फिर हम इसको टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, MMR हो गया, ये वैक्सीन्स एज पर देते हैं। और उसके बाद बूस्टर्स आ जाते हैं। देयर आर सर्टेन वैक्सीन्स विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट, सो यू कैन डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन एंड यू कैन गेट इट। जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, या मेनिंगोकोकल की वैक्सीन है, यू कैन डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन। गिव चाइल्ड शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। दूसरा जो एक आर्ग्यूमेंट है कि डोमेस्टिक वैक्सीनेशन या इंटरनेशनल वैक्सीन्स, सो क्या कोई डिफरेंस है?
देखो जितनी भी वैक्सीन्स हैं दे आर इफेक्टिव, दे हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड ऑफ ऑल द स्टडीज एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव कम इनटू दिस थिंग। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अच्छी कंपनी की अवेलेबल है, वो देनी चाहिए जी। और उसमें कुछ नहीं है, बहुत सारी मल्टीनेशनल वो भी बना रही हैं, हमारी इंडियन कंपनीज भी बना रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी वैक्सीन आई है वी शुड ट्रस्ट ऑन दैट वैक्सीन बिकॉज द वैक्सीन गोज थ्रू द ग्राइंड ऑफ लॉट ऑफ स्टडीज बिफोर कमिंग इनटू मार्केट। सो डॉक्टर, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ओरल हेल्थ। उसमें भी पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कंसर्न होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम जब टीथ आना शुरू होते हैं, अगर उसमें कोई डिले है तो क्यों है, और ओरल हाइजीन को लेके कि ब्रशिंग कब से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए ब्रशिंग आइडियली स्पीकिंग जब दांत निकल आए तो ब्रशिंग शुरू होनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि जब दांत निकल आया तो उसको सफाई की ज़रूरत है। सो फॉर इनिशियल पीरियड you can just apply a cotton cloth on your finger and you can rub it against the teeth without putting any kind of a toothpaste or this thing. Okay. So for initially you can do this thing. But once the child grows, so it depends upon a lot of factors, the readiness of the child. क्या चाइल्ड कुल्ला कर सकता है, बाहर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, so many factors are there. But yes, by the age of say 18 months we should start with the proper brushing and oral hygiene important है. Till that time you can, but हैविंग सेड दैट इसका एक बहुत सारी चीज़ें पे वेरिएशन, मतलब बच्चे टू बच्चा भी बहुत सारा डिफर करता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई हम ये शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट टीथिंग कब से स्टार्ट होती है डॉक्टर? व्हाट इज़ द राइट एज फॉर दैट? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने प्रियंका पूछा है। अगर हम रेंज देखें तो पहला दांत जो है 4 महीने से लेके और 15 महीने तक कभी भी आ सकता है। मदर्स अक्सर मेरे पास आती हैं कि डॉक्टर साहब ये 9 महीना का हो गया दांत नहीं आया या 15 महीने का हो गया दांत नहीं आया। सो आई मस्ट गिव अ वेरी क्लियर मैसेज कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है, उसमें कोई कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, यू हैव बीन गिविंग द रेगुलर डोजेज ऑफ विटामिन डी एज रिकमेंडेड बाय योर पीडियाट्रिशियन, तो 15 महीने तक अगर दांत नहीं आया तो वी नीड नॉट बॉदर। कई बार फैमिली में टेंडेंसी होती है, अगर आप अपनी मदर से पूछेंगी तो हो सकता है आपके हस्बैंड की भी जो है वो डिलेड डेंटिशन हुई हो। सो डिलेड डेंटिशन जनरली इज नॉर्मल इफ द चाइल्ड इज ग्रोइंग वेल। सो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 15 महीने तक अगर दांत नहीं भी आया है तो आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। बट द राइडर इज कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी ठीक है, वेट हाइट भी उसकी ठीक चल रही है, दिस वाज थिंग। बहुत सारी मदर्स ये कंसर्न होती हैं, डॉक्टर साहब ये दांत निकल रहा है तो इसको लूज मोशंस हो गए, दांत निकल रहा है तो हाई फीवर आ गया। सो आई विल लाइक टू टेल दैट यू नो dentition can cause some kind of irritation, some kind of little inflammation in the gums and some kind of discomfort to the child, but it is not going to lead to high fevers or it is not going to lead to severe diarrheas. डायरियाज होते ज़रूर हैं डेंटिशन पीरियड में, क्योंकि बच्चा गंदी चीज़ें माउथिंग करता है और उसको चबाता रहता है, बट दैट डायरिया इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बट नॉट बिकॉज ऑफ द डेंटिशन पर से। दिस इज वन। सेकेंडली, जो हम बच्चे को फीवर भी कहते हैं कि हाई फीवर आ गया डेंटिशन की वजह से, हाई फीवर डेंटिशन से नहीं आया। आई हैव सीन चिल्ड्रन गेटिंग सिक कि मदर छोटे बच्चे को मेरे पास लेके ही नहीं आ रही है, 6 दिन से घर बैठी हुई है कि ये तो दांतों का है, एंड द चाइल्ड हैज निमोनिया एंड द चाइल्ड हैज सेप्टिसीमिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर जा रहा है ये डेंटिशन की वजह से नहीं है। बहुत सारी मदर्स ये भी सोचती हैं कि अगर डेंटिशन आ रहा है तो मैं एस्प्रिन, बच्चों को एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज एस्प्रिन कैन कॉज रेइस सिंड्रोम और दिस थिंग। कई बार अल्कोहल लगाने की सोचते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेंटिशन इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, जो कि 4 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में दांत आ जाएंगे आपके बच्चे के, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। जनरली पहले नीचे वाला इंसाइजर आता है, उसके बाद में वो आते रहते हैं। कई बार मदर्स, अब ये तो दांत आने की बात है, फिर कई बार मदर्स को होता है कि टूटेंगे कब, तो जनरली जो फर्स्ट मिल्क टीथ जो होता है, तो मिल्क टीथ हमारे में 20 होते हैं और जो परमानेंट डेंटिशन होती है वो 32 होते हैं। सो जो पहला दांत जब टूटता है दैट इज अराउंड द एज ऑफ 6.5 years। तो कई बार होता है कि वो टाइम पे टूटता है, कई बार थोड़ा पहले टूट जाता है, कई बार थोड़ा बाद में टूटता है। तो देयर आर नॉर्मल वेरिएशंस इन दैट, वी नीड नॉट बॉदर, बट येस वी शुड कंसल्ट ए डेंटिशियन। वैसे भी 1 साल की एज में हर बच्चे को एक बार डेंटल चेकअप हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो 6.5 साल के बाद में फिर वो 12 साल तक
टूटते और आते रहते हैं, सो फाइनल डेंटिशन इज देन फॉर्म्ड, जिसमें कि असली डेंटिशन तो थर्ड मोलर है वो 25 साल की उम्र में आता है, जिसको हम अकल दाढ़ भी कहते हैं, तो दैट कम्स एट अ लेटर स्टेज, तो वो उस प्रोसेस से चलता है। सो जनरली ये नेचुरल प्रोसेस होती है, और अगर बच्चे में कैल्शियम की, विटामिन डी, इन सब की डेफिशिएंसी नहीं है तो ये नॉर्मल वे से चलते रहते हैं। डेफिनेटली कई बार डेंटिशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है या ग्रोथ फेलियर है, तो कई बार वी हैव टू एड्रेस दोज इश्यूज फर्स्ट, Okay. so that the dentition goes on the proper line. All right. And by the age of 12, it should be all completed. हाँ, by the age of 12 it gets. Okay. So, doctor, you've been into ICUs, into emergencies for such a long time. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कहाँ पे पेरेंट्स कोई मिस्टेक कर जाते हैं which they should completely avoid, और ऐसे क्या सिचुएशंस हैं जिसमें they should rush to emergency without any delays? देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस कैजुअलिटी का और ICUs का है वो ये है कि देर आर सर्टेन कंडीशंस विच द पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ, जिसमें कि चाइल्ड कैन डिटेरियोरेट फास्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि दे शुड इमीडिएटली रश टू द इमरजेंसी। Okay. जैसे इफ़ योर चाइल्ड इज लेस देन 3 months एंड हैज स्टार्टेड हैविंग फीवर, show it to a pediatrician, because this child can deteriorate fast, can develop septicemia, so it is important. Okay. If child is between 3 months to 3 years, fever is under 102, it is okay, but if fever is going beyond 102, you must consult a pediatrician. Okay. It might be a bacterial infection which can go out of hand. जी. Then if child is more than 3 years and any child who is getting high grade fever to the tune of 104, you must contact the pediatrician. Then there are certain conditions which should not be taken lightly, especially in a child who is less than 3 years or 4 years, like dehydrations. Yeah. If your child is having absolutely watery diarrhea and child is 2 years or 3 years old, they can get dehydrated fast and they can go into shock. So it is important for mothers to understand that most of the diarrheas are self-limiting, they don't trouble much, but we should have a high index of suspicion where it is absolutely watery, then the child can get dehydrated. जी. So that is very important. Any child who is developing high grade fever with certain symptoms that, the child is at times little drowsy, or child is developing a stiff neck, or child is developing rashes which are absolutely red, which we call as petechial rashes, then also you should immediately rush and show it to a pediatrician. If child becomes unconscious because of any reason or throws seizure because of any reason, then also you should not be staying at home, you should be going straight away to the emergency. One very important area is respiratory distress. If you feel that your child is not able to breathe well, child is having a respiratory rate is more, and child is getting little drowsy, maybe your child is suffering from asthma attack or pneumonia or this thing, and probably the child needs oxygen, so timely oxygen at times is required, so you should immediately get to emergency, or at least see the SpO2 meter is available, pulse oximeter is available even in the houses with us. You should check with the pulse oximeter, this is there. Any child who has acute pain in the abdomen, Okay. accompanied by vomiting and this thing, so this can be a pediatric abdominal surgical emergency, so you should always consult your pediatrician. At times we think that the injury what the child has got is trivial, छोटी सी चोट हो जाएगी, बच्चा गिर गया, सिर पे चोट लगी, ठीक है, थोड़ी सी बाम लगाई और छोड़ दिया, but that injury at times we can miss. Maybe it is a head injury which is not apparent to you right now, maybe there is some kind of little fracture of clavicle or this thing which you are not, तो अगर इंजरी हो रही है जिसमें बच्चा बार बार रोए जा रहा हुआ, बर्न्स में भी जब लगता है कि बर्न बच्चे को सिग्निफिकेंट हुए हैं, तो यू शुड इमीडिएटली रश टू द इमरजेंसी, बिकॉज व्हाट आई हैव फाउंड इज, बहुत सारी चीज़ों में हमें ये भी लगता है कि मेरी इमरजेंसी में बच्चा आया तो कई बार सीधा वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द ऑक्सीजनेशन, और द चाइल्ड इज़ इन शॉक, और द चाइल्ड इज़ हैविंग सीवियर डिहाइड्रेशन, तो इन सब चीज़ों को बचाना बड़ा ज़रूरी है. सो द पर्पज़ इज़ नॉट टू गेट पैनिकी और पैरानॉइड or to get extremely worried about it. The purpose is to attune the parents that when to go to emergency. Most of the conditions, 95-98% of the conditions, थोड़ा fever आ रहा, खांसी है, जुकाम है, कुछ नहीं होने वाला, that is okay, you can treat at home and this thing. But these are certain conditions where should be, and especially you should be more careful with neonates. जो बच्चे 30 दिन से छोटे हैं, 3 महीने से छोटे हैं, उनमें we should go little early, या जो थोड़े malnourished हैं, या जिनको ऑलरेडी पुरानी बीमारियां चल रही हैं, जैसे अस्थमा है, डायबिटीज़ है, they are more vulnerable. So these are some of the conditions where we should be careful and rushing to emergency. I think it's very important to know these things, क्योंकि लेट होने से अच्छा टाइमली ट्रीटमेंट मिलना. अच्छा टाइमली पहुंच जाए.
बिल्कुल. बहुत ज़रूरी है. Thank you so much for such detailed insights, Doctor. Another topic which I really want to touch upon briefly, जो हो रहा है बट आई थिंक हम लोग बहुत इग्नोरेंट हैं, एंड दैट इज़ द सेक्शुअल अब्यूज़, एंड द नंबर्स आर एट अ राइज एंड पेरेंट्स आर अनअवेयर. सो व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आउट टू दोज पेरेंट्स, और कैसे हम बच्चों को वी कैन टीच देम टू बी सेफ एंड टू बी मोर वोकल अबाउट इट. देखो, बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द चिल्ड्रन they are sexually abused when they are in their childhood. और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बच्चे कभी बताते नहीं हैं पेरेंट्स को कि वी आर बीइंग अब्यूज्ड, मे बी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड और वट एवर रीज़न. एंड 70-80% टाइम्स जो होता है वो अब्यूज़र घर में या घर के आसपास ही होता है, वो इज़ एक्सेसिबल टू द चाइल्ड. Yes. वो किसी किस्म का आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो किसी किस्म का रिलेटिव हो सकता है, हु इज़ एक्सेसिबल टू द चाइल्ड. एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द अब्यूज़र जनरली इज़ दैट ही इज़ इनएडिक्वेट, शाई, इंट्रोवर्ट. जनरली ऐसा होता है. और वो आप सस्पेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये मेरे बच्चे को अब्यूज़ करेगा. सो बच्चा तो बताएगा नहीं. सो मदर शुड see the cues and should have high index of suspicion to catch that yes, my child is getting sexually abused. कोई बच्चा एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर अंकल के साथ नहीं जाना चाहता, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं जाना चाहता, या बच्चा सडनली घबरा जाता है, सडनली बेड वेटिंग शुरू हो जाती है जो पहले ठीक हो गई थी, या सडनली थम सकिंग बढ़ जाती है, या चाइल्ड इज़ इरिटेबल, या मदर हक करती है तो उसको ही रेजिस्ट करता है, या इस तरह के अगर कहीं पर हमें सिम्टम्स लगते हैं, या चेंज ऑफ बिहेवियर बच्चे का होने लग जाता है, बच्चे को चलने में दिक्कत आ जाती है, जेनेटिलिया में ज़रा सा भी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो कि बच्चे को यूरिन में पेन है या कुछ है, तो इमीडिएटली दिस थिंग शुड बी डेल्ट विद, एंड द मदर शुड इन्वेस्टिगेट इनटू इट कि इज़ माई चाइल्ड गेटिंग सेक्शुअली अब्यूज्ड, विच इज़ वेरी कॉमन, एंड दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ नॉट बीइंग जनरली डिस्कस्ड इन द सोसाइटी ऑल्सो. Absolutely. And the kind of mammoth proportion this disease has, so we can't insulate from this issue. So, Doctor, we have discussed so many things, and thank you so much for such detailed answers, very insightful answers. I think parents have these questions on very regular basis, और अगर उनका सही टाइम पे आंसर मिल जाए, so nothing like it. Thank you. Is there one piece of advice you would like to give out to parents in today's times? देखो, पेरेंट्स को मैं 2-3 एडवाइस देना चाहूँगा. मेरे से पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मतलब व्हाट वी शुड डू टू बिकम अ गुड पेरेंट. सबसे पहली चीज़ है, दे शुड गिव अनकंडीशनल लव टू द चाइल्ड. Whether the child is performing well or not performing well, your love should be absolutely unconditional. That is one thing which is very important. Next message I will like to give is be a good role model to your children. Children are not going to listen to what you are saying. They are going to do what you are doing. बिल्कुल. So it is extremely important, be a good role model for your child and believe in positive parenting. हाँ जी. You should praise, you should encourage the child, you should be available with the child. The best gift is you give time to your child. Yeah. And children are gift from the God which have been given to us with a huge responsibility. So it is extremely important, and whatever we are doing, whatever we are teaching, it should be democratic. बिल्कुल. The child should be encouraged to ask questions, and it should be a collaborative problem solving type of a thing rather than a dictatorial type of a thing that I will teach you what to do. It is, let us both find out what is better for you. True. Faith and trust is extremely important between the parents and the child. It is extremely important. And the last message I will like to give to the parents is that be cool, calm, patient. Most of the problems, deviations, diseases, they go away with time. Yes. And the only thing is you need good treatment and guidance. And the very important part is that infections are, emotions are very infectious. So if you are positive, if you are optimistic, Yeah. if you are flexible, then the child will imbibe all the habits. I will move on to the next segment. We call it the community Q&A, where we pick out one question we receive from our community members. And today's question we have is from Diksha, the question she has is, why does fever persist in children even after getting them vaccinated?
Look, it is a very wild question. The thing is that once we vaccinate a child, the fever can come. जी. Because once any foreign body goes in the body, so the body also reacts. So once we give a vaccine, at times there is no fever, but at times the body also reacts in the form of producing fever. Yeah. So with vaccine, 2-3 side effects can come. That is, maybe there is a local swelling at the site of the injection, or maybe little fever, or maybe little rash here or there. But most of the vaccines are absolutely safe, and these symptoms generally resolve and melt over the period of 48 hours. All right. Thank you so much. And now we move on to another segment. We call it fun segment. And here we kind of lighten up the topic a little because we've discussed so many serious things. आज का जो fun segment है उसका नाम है Baby Talk. Fact check mode. Okay. So I'll give you one common parenting belief and you have to instantly tell us if it is a myth or a fact. So let's see how many myths you can bust today. First one is teething causes fever and diarrhea. Not at all. So it's a myth. It is a myth. Okay. Rubbing brandy on gums help with teething pain. No. Myth again. You should wake a sleeping baby to feed them. No. Green poop means something is wrong. No. Generally, green poop at the when the child is less than 9 months is absolutely normal color and nothing to be worried about it. And moreover, if your child is growing well, is comfortably sleeping, there is no need to disturb the child. So let the child sleep. Once the child wake up, the only thing you need to watch is that the child should be passing almost 5 to 6 times urine in 24 hours. Okay. Starting from what age? Starting from newborn period to say 5 years. All right. Walking barefoot helps a baby walk faster. It is a myth. Okay. Thumb sucking will ruin a child's teeth. Thumb sucking below the age of 4 years will not fiddle with the dental malalignment. But yes, if it persists beyond 6 years, it is going to fiddle with the teeth, overbiting can happen, underbiting can happen, and malalignment of the teeth can happen. Sugar makes kids hyperactive. Sugar should be given less. And they should be, as I told you, less than 2 years, we should not give any added sugar. And even thereafter, the sugar intake should be low. All right. Sweating means a fever is breaking. Yes. When sweating comes, sweating is a natural defense mechanism for fever. Ji. So once the sweating sets in, the body temperature automatically starts lowering down. Okay. Pacifiers cause speech delays. Pacifiers have nothing to do with speech delay. Okay. So it's a myth. Yeah. That was it for our fun segment. It's so nice. Thank you so much, Dr. Yeah, Ravi, yeah, it for was being so here nice. today. Yeah, It means so nice. so much. I'm sure It's our so Matehood community is going to be very happy and they'll have so much insights. And Priyanka, special thanks to you. It has been a great conversation coming and talking to you and discussing about so many issues about our little angels. So it is so nice. And it is very good that you are a mother and you asked all the pertinent questions which Thank any you mother so can think much. of. Thanks a lot. Thank you for all your support as well and sharing your journey with us. I think it's Thank been you very so much. useful. It's Yeah. going to be very useful with for all our listeners.